Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Are you all ready? Haribo. Mother is coming soon. I just wanted to take one information from all of you. कितने लोगों को तेलुगु समझ नहीं आता है? How many of you don't understand Telugu? Don't understand Telugu? How many of you don't understand Telugu? कितने लोगों को तेलुगु समझ में नहीं आती है? How many devotees cannot understand Hindi? హిందీ ఎవరికి అర్థం కాదు? హిందీ ఎవరికి అర్థం కాదు? ఎంతమందికి హిందీ అర్థం కాదు? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. We got your information. We'll have it soon. Please continue your enthusiasm till Mataji comes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. No Hindi, no Telugu, only Harinam. Rama Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Hare Hare Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Hare Krishna. Today, with our immense great fortune, among all of us, we have the presence of Association of Her Grace. Hari Bol. Hari Bol. I would like to hear from you. Hari Bol. So, just to introduce a little bit, everybody knows about Mataji. Everybody knows about her. She is just little about herself. Even though she is from ISKCON Visakhapatnam, but all of us we know about her wonderful preaching, wonderful Krishna consciousness inspiration for all of us. So I do not take much time for any one of you. Quickly we'll be hearing from Mataji, but Mataji will be speaking in Telugu and in between. But at the same time, there are many Hindi audience. So Mataji will be also speaking in between some Hindi, so that Hindi speaking devotees will get proper benefit out of it. How many of you? I don't mind. I can speak in English, Hindi, Telugu, Gujarati, Bengali. Okay, how many of you are? आप में सब कितने लोगों को हिंदी समझ में आती है? और कितने लोगों? ओके, తెలుగు వాళ్ళు ఎవరికి హిందీ అర్థం అవ్వదు, హిందీ అర్థమైన వాళ్ళే చేతెత్తండి. అర్థమైన వాళ్ళు ఎవరైతే హిందీ అర్థం చే ఓకే, ఎవరికైతే హిందీ అర్థం అవ్వదు తెలుగు వాళ్ళు? చీటింగ్ ఇది చీటింగ్. హైదరాబాద్ లో హిందీ అర్థం అవ్వదంటే నేను నమ్మను. అంతే కదా, ఇది చీటింగ్. ఇది you want to? Oh yeah, sure, I can do that. 5 minutes Kirtan. Oh, Hare Krishna. Madhura madhura naam Sitaram Sitaram. Madhura madhura naam Sitaram Sita. Madhura madhura naam Sitaram Sitaram. Sitaram Madhura madhura naam Sitaram Sitaram. Madhura madhura naam Sitaram Sitaram. Sitaram 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 Sitaram. Sitaram 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 Sitaram. Sitaram 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 Sitaram. Sitaram 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 Sitaram.
सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम
सीताराम सीताराम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मदन मोहन भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की गौनिताय की जय लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय अपने अपने गुरुदेव की जय हरे कृष्णा You could put the verse, the Bhagavatam verse. Oh, you've already put it. Okay. So I'll speak from this verse today. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayo mudiraye नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम की जय वेदव्यास मुनि की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय We are going to discuss today from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, 24 verse. Aham uchavacher dravye kriyayotpanna yanagahe naiva tushyarchito archyam Bhutagramavamaniнаha. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. My dear mother, even if he worships with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. There are 64 different prescriptions for worship of the deity in the temple, and there are many items offered to the deity, some valuable and some less valuable. It is prescribed in the Bhagavad Gita, if a devotee offers me a small flower, a leaf, some water, or a little fruit, I will accept it. The real purpose is to exhibit one's loving devotion to the Lord. The offerings themselves are secondary. If one has not developed loving devotion to the Lord and simply offers many kinds of foodstuffs, fruits, and flowers without real devotion, the offering will not be accepted by the Lord. We cannot bribe the personality of Godhead. He is so great that our bribery has no value, nor has he any scarcity, since he is full in himself. What can we offer him? Everything is produced by him. We simply offer to show our love and gratitude to the Lord. This gratitude and love for God is exhibited by pure devotee, who knows that the Lord lives in every living entity. As such, temple worship necessary includes distribution of prasada. It is not that one should create a temple in his private apartment, offer something to the Lord and then eat. Of course, that is better than simply cooking foodstuffs and eating without understanding one's relationship with the Lord. People who act in this manner are like animals. But the devotee who wants to elevate himself to the higher level of understanding must know that the Lord is present in every living entity. And as stated in the previous verse, one should be compassionate to other living entities. A devotee should worship the Supreme Lord, be friendly to persons who are on the same level, and be compassionate to the ignorant.
One should exhibit his compassion for ignorant living entities by distributing prasadam. Distribution of prasadam to the ignorant masses of people is essential for persons who make offerings to the personality of Godhead. Real love and devotion is accepted by the Lord. Many valuable foodstuffs may be presented to a person, but if the person is not hungry, all such offerings are useless for him. Similarly, we may offer many valuable items to the deity, but if we have no real sense of devotion and no real sense of Lord's presence everywhere, then we are lacking in devotional service. In such a state of ignorance, we cannot offer anything acceptable to the Lord. Srila Prabhupada ki jai. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namo. Namo Pankajanaභaya Namo Pankajamaline Namo Pankajanetraya Namaste Pankajangri. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Namo Yom Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Ajnanatimirandhasya Gnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vancha kalpatarubhayascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. इस कंट्रोवर्सी का क्या करें? तेलुगु हिंदी हिंदी तेलुगु. ఒక్కసారి నిజం చెప్పండి తెలుగు వాళ్ళు, మీకు హిందీ అర్థం అవుతుందా లేదా? అర్థం అవ్వదా? अरे अब मुझे पता नहीं है क्या करना है. ऐसे करते रहे हम लोग 1 बजे तक कि मैं कुछ बात करूं. हाँ ओके मैं अभी हिंदी में बात करती हूँ. सही टाइम पे सबका स्माइल ऐसा आ रहा है कि नहीं तो मुझे समझ में आ जाएगा हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो तेलुगु वाले रेस्पॉन्ड मत करो, ऐसा स्टैच्यू के जैसे बैठो. देखो सभी हंसे अभी. दैट्स इट ओवर. सबसे पहले तो आई एम सो वेरी हैप्पी टू बी हियर. 36 years बैक मेरी आध्यात्मिक जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी. जब मैं छोटी सी थी, हम बॉम्बे से यहाँ आए थे, तो पहले तो मैं सिकंदराबाद इस्कॉन के स्कूल में पढ़ती थी. बाद में स्कूल बंद हो गई. तो आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल महामन प्रभु वे प्रिंसिपल हुआ करते थे उस स्कूल की. और फिर हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए और फिर हम इस मंदिर में आना जाना करते थे. तो
मेरी बचपन की बहुत सारी यादें इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अभी मंदिर काफ़ी बदल गया है, लेकिन 36 इयर्स पहले जो था बिल्कुल अलग था। तो हम जब छोटे-छोटे थे तो मैं और मेरी बहन ये पूरे मंदिर में घूमते थे, ऊपर नीचे बदमाशी करते थे। कभी आनंद में प्रभु के रूम में पीप करके देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं। तो कभी यहाँ पे एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे श्री वत्स प्रभु, उनके कमरे में हम इंतज़ार करते थे कि कब वो अपना स्टील का डब्बा खोलेंगे और पुल्ला रेड्डी के पेड़े देंगे हमको। तो हम इंतज़ार ही करते थे कि कभी ऐसे प्रभु जी बोले कि आओ 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 और डब्बा खोले और हमको पेड़ा दे दे। तो ऐसी बहुत सारी यादें यहाँ पे जुड़ी है। यहाँ पे ही मैं समर कैंप में मैंने इस्कॉन के साथ में सीरियसली हम जो जुड़ना हुआ बाय अटेंडिंग द समर कैंप हियर, और बहुत सारी यादें हैं। और आज सभा में मैं बताती हूँ कि सिकंदराबाद मंदिर के चरणामृत की चोर मैं ही हूँ। वहाँ का चरणामृत बहुत अच्छा लगता था, और वहाँ पे ज़्यादा कोई डिवोटीज होते नहीं थे, बाहर में पड़ा रहता था। मैं थोड़ा थोड़ा ही चोरी करती थी, मेरी बहन तो पूरा गट पी जाती थी। और वहाँ के टेम्पल में छोटा सा बेल हुआ करता था, मतलब अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, बहुत ये सारी मेरी मेमोरीज 36 इयर्स की पहले की है। तो हम वो बेल बजाते तो सहदेव प्रभु बाहर आएंगे, नहीं तो अंदर में वो अपनी किताबों में बिजी रहते हैं। तो मेरी छोटी बहन बार बार बेल बजाती और प्रभु जी आते और मैं ही खड़ी मिलती थी, और प्रभु जी कहते तुमने बजाया? नहीं प्रभु जी मैंने नहीं बजाया। और सच नहीं बोल पाती थी कि किसने बजाया। तो हैदराबाद में मेरी सारी बचपन की बहुत सारी यादें हैं, और ऑफकोर्स और यहाँ पे आना होता नहीं है, कितने साल गुजर गए। तो ये इसी कमरों में, इसी कॉरिडोर्स में, और सबसे पहला भागवतम क्लास मैंने यहाँ ही दिया था जब मैं 9 साल की थी। तो हिज ग्रेस आत्म तत्व प्रभु शिला प्रभुपाद के डिसाइपल और महासुंदर प्रभु, ऐसे मेरे बहुत सारे शिक्षा गुरुज थे, और उन्होंने मुझे मतलब कि नहीं हम तुम बोलो, और बहुत ज़्यादा भूरी भूरी प्यार मिला है यहाँ सबसे, और बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला है। और उन दिनों में मैं जो यहाँ ही स्कूल में पढ़ती थी हैदराबाद में, और संडे स्कूल भी यहाँ मैंने शुरू किया था, और फिर एक गीता क्लब हमने शुरू किया था उन दिनों में कुछ लड़कियों ने मिल के। और उम्र छोटी थी, ज्ञान उतना था नहीं, और बहुत ही सारी छोटी छोटी डिज़ायर्स थी। मुझे याद है उन दिनों में मैं एक छोटा सा मैगज़ीन भी निकालती थी, हरे कृष्णा वर्ल्ड, छोटा सा ही था, लेकिन ऐसा मैं सोचती हूँ कि क्योंकि उम्र छोटी थी, हर चीज़ ऐसी बहुत बड़ी लगती थी कि कितनी बड़ी बात मैं कर रही हूँ। आज तो अब का जनरेशन 5 साल के बच्चे भी बहुत कुछ जानते हैं, और हम तो 10 साल के भी थे तो इतनी बुद्धि नहीं थी। तो मुझे याद है मेरे घर में एक डेस्कजेट प्रिंटर था, उसमें मैंने अपना कार्ड प्रिंट किया था, विजिटिंग कार्ड फर्स्ट टाइम, और उसमें मैंने लिखा था मेरा जो पहले का नाम था पूर्वाश्रम, और मेरा नाम लिखा, और मैंने नीचे लिखा था डायरेक्टर, और मेरे संडे स्कूल का नाम था अवेक। हमने कार्ड्स भी बनाए थे, ये सब हैदराबाद इस्कॉन की मेमोरीज है। छोटा सा बैच बनाया था, तो मैंने ऐसे कार्ड में लिखा था डायरेक्टर अवेक संडे स्कूल, डायरेक्टर गीता क्लब, चीफ एडिटर हरे कृष्णा वर्ल्ड, कल्चरल डायरेक्टर इस्कॉन एबिट्स। उम्र कितनी थी? 11 साल। और उस कार्ड को मैं, अब ज़्यादा तो था नहीं, खुद ही घर में प्रिंट करके काट के बनाया था, तो होते थे 10-15 कार्ड। और उन दिनों में मुझे याद है हम गए थे मुंबई, मेरे कोई रिलेटिव्स की कुछ शादी वगैरह थी, तो अब मुझे लगा अब हम तो इस्कॉन में बहुत बड़े लोग हैं, हमारे बड़े बड़े कार्ड है। तो हम जब गए मुंबई में, तो मैंने, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब थे, मैंने कहा देखो अब हम तो वहाँ के डायरेक्टर हैं इस्कॉन एबिट्स के, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मिलना चाहेंगे। अब मैं छोटी सी थी तो सब सोचते थे अब छोटे बच्चों का क्या ये है, बोलता हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। तो उन दिनों में हिज होलीनेस श्रीधर स्वामी महाराज मुंबई के टेम्पल प्रेसिडेंट थे। तो हम बैठे थे बाहर में, और उनके सेक्रेटरी को कहा कि ऐसे महाराज से मिलने आए हैं। तो थोड़ा सा, हाँ बैठो बैठो बताएंगे आपको। तो 5-10 मिनट हुआ, बुलाया नहीं। तो मुझे लगा बुलाया नहीं, तो मैंने कहा ये लो मेरा कार्ड दिखा दो। मेरा कार्ड दिखा दो जरा। मुझे लगा मेरा कार्ड देखने से बोलेंगे अरे आइए आप तो आइए। तो अब जिनको मैंने दिया कार्ड वो भी हंस रहे थे, लेकिन अब नहीं, तब नहीं समझ में आता था। तब लगता था कि कार्ड देख के देखो कैसे उनके भी मुंह पे स्माइल आ गई एकदम। और फिर कार्ड लेके गए, और जैसे ही कार्ड लिया बुला भी दिया अंदर में। शायद महाराज को लगा हुआ कौन है वो गुड़िया देखते हैं। और फिर अंदर में गए, महाराज से आशीर्वाद वगैरह लिया। फिर मैं बाहर में आके बहुत ही सीरियसली सोच रही थी। तो मेरे मम्मी ने पूछा क्या हुआ। मैंने, महाराज का ऑफिस बहुत बड़ा है, ऐसा ऑफिस मेरा भी होना चाहिए था।
तो कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि कितनी सारी जो बचपना था, जो इनोसेंस था, कितनी सारी चीज़ें भगवान से मांगी है उस टाइम पे। और मैं, मेरा एक रियलाइजेशन है कि आप जो भी मांगो, जिस भी अवस्था में, ठाकुर जी हर चीज़ नोट करते हैं, हर चीज़, और कभी ना कभी उनके टाइम के अनुसार वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए कभी कभी डर लगता है कि सारी इच्छाएं ना पूरी करें, क्योंकि तब जो इच्छाएं मांगी थी अब समझ में आता है कि वो और काम की नहीं है। आई हैव आउट ग्रोन देम। अब मैं बड़ी हो गई उस इच्छाओं से। जो भी मांगा था वो बचपना था, वो एक दौर था जिंदगी का, छोटी थी मैं। तो अब अभी आज सुबह ही मैं मंगला आरती में जब आई वाज सो हैप्पी सीइंग राधा मदन मोहन आफ्टर सो मेनी years and coming in. I mean, ये मेरा प्री प्लान प्रोग्राम नहीं था, इट सडनली हैपेंड। आई हैड टू कम फॉर ए बंगाली प्रोग्राम, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की बहुत बहुत सुंदर सुंदर मेमोरीज है। और इन दिनों में इतने भक्त नहीं थे, बहुत कम भक्त थे हम लोग, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती थी। और अभी मुझे पता नहीं, लेकिन जो प्रभुपाद जी का कमरा है, वी यूज्ड टू कॉल इट जीबीसी रूम। जीबीसी रूम बोलते थे क्योंकि वहाँ पे जीबीसी लोग रहते थे, जो भी आएंगे तो वहाँ पे रहते थे। और हमारे गुरु महाराज जी, होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज, रेगुलरली आते थे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं उनके साथ में वॉक करके जब करती थी। अब तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन उन दिनों में ज़्यादा भक्त थे नहीं हैदराबाद में। तो जो जीबीसी रूम और एक जो रूम था, उसके सामने एक छोटा सा कॉरिडोर है वॉकिंग करने का। तो गुरु महाराज की इतनी लंबी सी वो जो जपमाला बैग, आपने पता नहीं आपने लोगों ने देखा होगा किसमें, जब गुरु महाराज की तबीयत ठीक थी, उनकी माला बैग के जो एक एक माला, एक एक बीड है ना, इतनी बड़ी बड़ी होती है। इतनी लंबी माला बैग, उनके ब्राह्मण थ्रेड्स और उनके नर्सिंग थ्रेड्स, उनके क्या कहते हैं काउंटिंग मशीन, और एक लकड़ी लेके वो रहते थे। तो स्पेन में उनको अटैक हुआ था ना, किसी ने उनका गला काट दिया था, तो तब से वे लाठी लेके घूमते हैं। और वो लाठी के अंदर में एक्चुअली बड़ा सा चाकू है, जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। मैंने देखा नहीं आज तक, पर जब मैं छोटी थी मुझे बताया गया था। तो जब गुरु महाराज चांटिंग करते थे तो मैं भी उनके पीछे पीछे, वो जिस तरह से करते थे मैं भी उसी तरह से हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। और गुरु महाराज इतना हंसते थे। और फिर वो जब बाथरूम जाते या कुछ, तो वो मुझे सारी माला बैग और लकड़ी वगैरह सब में ना मुझे दे के जाते थे, और मैं उसको ऐसे करके पकड़ लेती थी। और फिर जब नीचे उतरते तो वो देखते कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो लकड़ी पकड़ने के लिए, तो तुम पकड़ोगी? बोला हाँ मैं पकड़ूंगी। और गुरु महाराज आगे चलते थे, और कोई भी मेरे पास आता तो मैं कहता था छूना नहीं, चाकू है इसमें, चाकू है इसमें गुरु महाराज का। और उसको हम पकड़ के जो है उनके साथ में, और वो जहाँ जाते, मुझे पता नहीं अब तो ये इम्पॉसिबल है। वो एक सन्यासी है, बट मैं कैसे चूहिया जैसे घुस जाती थी उनके गाड़ी में, वैन में। मुझे याद है उनके साथ में वो यहाँ से सिकंदराबाद जा रहे थे, तो पूरे रास्ते भर, ठीक, अब लगता है कि क्या क्या किया अज्ञानतावश। लेकिन तब ना मुझे याद है गुरु महाराज को पूरा हैदराबाद का टूर दे रही थी मैं। ये आरटीसी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से हमारा रथ यात्रा होता है, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। ये मेरी कंप्यूटर क्लास है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, और रास्ता भर है ना। तो बहुत सारी सुंदर सुंदर, एक पूरा क्लास भागवतम छोड़ के मैं आपको हैदराबाद के बारे में बता सकती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे हुआ था, और कितना जो है हमको यहाँ पे बहुत सारा लव एंड अफेक्शन मिला है सब लीडर्स से। और बहुत अच्छा लगा यहाँ फिर एक बार आके, एक अलग ही दौर है ये। तो एनीवे, आज का ये आपका प्रोग्राम का हेडिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रीतिवर्धन। प्रीतिवर्धन, प्रेम वर्धन होना, प्रेम बढ़ाना, यही तो हम चाहते हैं। भगवान कृष्ण से हमारा प्रेम बढ़े। माया आंखों से अंदर आती है और भगवान कानों से। जितना ठाकुर जी के बारे में सुनेंगे उतना उनके ऊपर में हमारा प्रेम बढ़ेगा। कितना सुंदर टाइटल है ये, प्रीतिवर्धन। ठाकुर जी के बारे में और हमें उनके बारे में सुनना है, और इतना सुनना है कि हम जो देखें उनके कनेक्शन में उस चीज़ को देख पाए। जिसके बारे में ज़्यादा सुनेंगे उनसे प्यार होगा, और जब प्यार एक स्थिति पे आ जाता है तब हर जगह वो ही दिखते हैं। रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। जो प्योर डिवोटी, जो अच्छा डिवोटी है, क्या होता है, स्थावर जंगम देखे, कुछ भी देखे उसको वो चीज़ नहीं दिखती है, उसमें उसको भगवान उसमें उसको ठाकुर जी दिखते हैं। और इस लेवल पे हमें आना है जहाँ पे हम हर एक चीज़ को, भगवान गीता में क्या कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम मां एव पश्यति, और सच में एव प्रणश्यति। जो ऐसा कर सकता है, यो मां पश्यति सर्वत्र,
जो मुझे हर चीज में हर जगह देख सकता है और जो मुझ में सब कुछ देख सकता है, सचमेव ना प्रणश्यति, वो कभी मुझसे खोया नहीं है, ना मैं उनके लिए खोया हूँ, ना वो मेरे लिए खोया है। सो ठाकुर जी खुद कह रहे हैं दिस इज द लेवल हमें एक दिन आना है वेर एवरीथिंग रिमाइंड्स अस ऑफ कृष्णा, हर एक चीज में हम कृष्ण को देखें। सी एक्चुअली भगवत गीता का पूरा सार, ये जो 700 श्लोक है, उस श्लोक का पूरा सार एक श्लोक में भगवान ने दे दिया है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्य युक्त वैभव आत्मा नाम मत परायणम। मेरे बारे में सोचो, मेरे पर ध्यान करो, मेरी पूजा करो, मुझे प्यार करो, मुझे नमन करो, मुझ में रमना है, तुम्हारा मन मुझ में रमे। कैसे हो सकता है ये? हमारा डे टू डे कितना काम होता है, हम कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, दुकान में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कैसे भगवान को याद रखें? इसलिए क्या करना, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो हम कर रहे हैं उनमें ही भगवान को देखना है। इसलिए मैंने आज का ये श्लोक लिया जहाँ पे ठाकुर जी खुद कहते हैं कि मेरी तुम बहुत बढ़िया से पूजा करो, मंदिर में एक्सीलेंट पूजा करो, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं कब खुश होऊंगा? जब तुम सब में मुझको देख पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी डिफरेंट लेवल्स है, ठीक है। हम एक लेवल पे, बेसिक लेवल पे हमने मीट ईटिंग छोड़ दिया, माला कर रहे हैं, टी कॉफ़ी छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, वेरी गुड, क्लास 1। फिर क्लास 2, अब ये सब छोड़ दिया, द नो नो नो, द डोंट छोड़ दिया, अभी द डू। अब में 4 नियम का पालन करेंगे, हम लोग भक्ति करेंगे, 16 माला करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, वेरी गुड, क्लास 2। अभी नेक्स्ट, अब भगवान को इतना प्यार करेंगे कि हर पर्सन को, हर चीज, सबको देखेंगे, उसमें हम भगवान को देखेंगे। यस, ही इज ऑल्सो स्पार्क ऑफ कृष्णा, शी इज ऑल्सो स्पार्क ऑफ कृष्णा, और सबसे प्रेम करेंगे। उस लेवल पे हमें धीरे धीरे बढ़ना है। कभी कभी हम अच्छा भक्त हो जाते हैं, अच्छा इंसान नहीं हो पाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम सबको प्यार करें। इनफैक्ट नारद मुनि प्रचेतास को जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं नारद मुनि। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें हर चीज़ इंस्टेंटली चाहिए, जल्दी जल्दी से, तो नारद मुनि एक इंस्टेंट फॉर्मूला देते हैं। वो कहते हैं 3 चीज़ करो एंड तुष्यते आशु जनार्दना। इंस्टेंटली आप कृष्ण को हैप्पी कर सकते हो। बस 3 थिंग्स क्या बोलते हैं? कहते हैं सबसे पहले दूसरे जीव के ऊपर में दया दिखाओ, सर्व जीव के ऊपर में दया दिखाओ। सेकेंड थिंग संतुष्ट, तुमको जो ठाकुर जी ने दिया है उसमें खुश रहो। थर्ड थिंग, तुम्हारी जो इंद्रिय है उसको नियंत्रण में रखो। बस इतना करो, कृष्णा विल बी प्लीज्ड विथ यू। से आप देखो ठाकुर जी के हर एक इंस्ट्रक्शन, whether it is Bhagavatam, whether it is Bhagavad Gita, it's always in connection with other devotees. अगर आप 12वां अध्याय देखो भक्ति योग का, उसमें भी ठाकुर जी कंटिन्यूसली दूसरों के साथ हमारी डीलिंग कैसी रहनी चाहिए उसी पे दे रहे, उसी पे बात कर रहे। दूसरों के साथ डीलिंग्स परफेक्ट होनी चाहिए, तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए, देन ओनली आई विल लव यू। क्या कहते हैं कृष्ण? अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख शमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मां दृढनिश्चयः मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियः, यो मद्भक्ता समे प्रियः। दैट काइंड ऑफ डिवोटी आई लव वेरी मच। व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी? जो सबसे मैत्री भाव रखता है, जो सबको प्यार करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लव एंड रेस्पेक्ट every single person you come across, everybody. That is going to please Krishna. Because we love Krishna, we have to love everything connected to Krishna. कृष्ण के साथ संबंधित हर चीज को प्यार करना है। यही है हमारी भक्ति की पराकाष्ठा। कहते हैं ना, भक्ति का फाइनल स्टेज, जहाँ पे हम हर एक पर्सन को प्यार कर पाएंगे, उतना ही प्यार। नॉट दैट ये मेरा गुरु भाई है, ये मेरा गुरु बहन है, ये डिवोटी, नहीं, एवरीबडी वी लव इक्वली। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ कि एक लड़का और लड़की का अफेयर था, दोनों छुप छुप के मिलते थे। कुछ दिनों के बाद में लड़की ने कहा चलो शादी करते हैं। लड़के ने कहा ठीक है, अफेयर तक तो ठीक है, तुम मुझे मिल रही, लेकिन शादी मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर। मेरी मम्मी थोड़ी गुस्से वाली है, मेरे फादर हैंडीकैप है, मेरे
बेटी मेरी बहन को ये प्रॉब्लम है, मेरे भाई को ये प्रॉब्लम है, यू हैव टू एक्सेप्ट माई होल फैमिली. शादी मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट माई होल फैमिली. सेम थिंग भगवान कृष्ण भी हमसे बोल रहे हैं. ओके, यू लव मी, वेरी नाइस, तुम मंदिर आते हो, चले जाते हो, ठीक है, बट डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ माई फैमिली? मुझसे शादी करना चाहते हो, गोलोक वृंदावन आना चाहते हो, देन यू हैव टू लव एवरीबॉडी. आपको सबको प्यार करना पड़ेगा जो मुझसे कनेक्टेड है. और भगवान से तो हर चीज़ कनेक्टेड है, इस दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं. तो ये हमारे प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन है. जिस तरह से शादी मतलब उसके पूरे परिवार को एक्सेप्ट करना है, ये प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने के लिए. जब भगवान से संबंधित हर पर्सन, हमारे कम्युनिटी में अलग अलग टाइप के वैष्णव होंगे. कुछ गुस्से वाले वैष्णव होंगे, कुछ बहुत मीठे मीठे वैष्णव होंगे, कुछ अलग स्वभाव के होंगे, लेकिन हमें सबको प्यार करना है, हमें सबको एक्सेप्ट करना है. देन ओनली कृष्णा विल बी हैप्पी विद अस. मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, अमिताभ बच्चन का एक मूवी का सॉन्ग था, आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है. सुना है कि नहीं? चलता है ना ऐसा, बीच बीच में कुछ बोल सकते हैं ना. ठीक है. अरे बहुत सुंदर सॉन्ग है वो. उसमें ये बताता है वो कि जिसकी बीबी लंबी हो, छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ यूज हो जाता है. अब उन दिनों में उस गाने का इतना समझ में आया नहीं था, सब गाते थे तो हम भी गाते थे, लेकिन अब जब व्हेन आई लुक बैक ना, मुझे लगता है कि दिस इज हाउ वी हैव टू लुक टूवर्ड्स लाइफ. हमको भगवान ने जैसा भी दिया, लंबा, मोटी, पतली, छोटी, जैसे भी हमारे कम्युनिटी में है डिवोटीज, कुछ गुस्से वाले, कुछ ऐसे वैसे है, पर सबका बड़ा काम है. Everybody is useful. Everybody is useful in Krishna's service. ऐसा नहीं है कि ये डिवोटी बहुत अच्छा है, ये everybody. There is nobody. You know, in fact मुझे एक पास टाइम प्रभुपाद का इतना अच्छा लगता है. श्रील प्रभुपाद एंड तमिल कृष्ण महाराज वगैरह एक गार्डन में सैर कर रहे थे, और प्रभुपाद तमिल कृष्ण महाराज को पूछ रहे थे, ये किस काम का है, ये किस काम का. तमिल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद ये ना मेडिसिनल हर्ब है, इससे ना ये होता है, ये ना ऐसा है, ये ना ऐसा है. फिर एक कैक्टस की तरफ प्रभुपाद ने अपनी लाठी दिखाई और तमिल कृष्ण महाराज से पूछा ये. तो तमिल कृष्ण महाराज ने कहा, प्रभुपाद दिस इज यूजलेस, ये कोई भी काम का नहीं है. और प्रभुपाद इतना गुस्सा हो गए, उन्होंने तमिल कृष्ण महाराज की तरफ देखा और कहा, यू आर यूजलेस. और सब शॉक, बिकॉज उन दिनों में तमिल कृष्ण महाराज को ऐसा बड़ा कमेंट देना, ही वॉज द प्रभुपाद सेक्रेटरी एंड कंसिडर्ड टू बी लाइक मोस्ट इंटेलिजेंट गाय. शॉक हो गए कि प्रभुपाद ऐसे क्यों बोल रहे हैं. और प्रभुपाद ने उसके बाद इतनी सुंदर बात कही. उन्होंने कहा, नथिंग इज यूजलेस इन कृष्णास क्रिएशन. भगवान कृष्ण के क्रिएशन में कुछ भी यूजलेस नहीं है. तुम्हें पता नहीं है इसको एज ऑफ नाउ कैसे यूज करते हैं. सच ही है, पहले वो एलोवेरा को कोई पूछता भी नहीं था, उसके बाद में रामदेव बाबा ने उसको काफ़ी फेमस कर दिया. अब तो हमारे सोप से लेके टूथपेस्ट से लेके हर एक चीज़ में एलोवेरा है. थक गए हम लोग अभी एलोवेरा से, राइट. पर हमें पता नहीं थी, लेकिन अब पता हो गया. तो कृष्ण की क्रिएशन में कुछ भी यूजलेस नहीं है, हर एक चीज़ काम में आते हैं. और हम भी यूजलेस नहीं है, कुछ ना कुछ वे से प्रभुपाद हमें यूज करेंगे उनके मूवमेंट में. और हमारे आसपास के डिवोटीज, कितने भी दोष हमें दिखे, एवरीबडी हैज ए रोल टू प्ले इन कृष्णाज प्ले. कृष्णा का प्ले चल रहा है ना, ये तो पूरा भगवान का ड्रामा चल रहा है, और यहाँ पे सब का रोल है, सबको कुछ ना कुछ रोल भगवान ने दिया है. सो ऑलवेज लव एवरीबडी. और है ही हम कितने, 800 करोड़ के पॉपुलेशन में कृष्ण भक्त कितने हैं? 1% भी नहीं है. अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स शायद 0.1% हम है ही हम कितने. उसमें भी हम दोष निकालते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. बट भगवान ने तो कह दिया कि इफ़ यू एबल टू सी मी इन एवरीबडी, इफ यू आर एबल टू लव मी in everybody, then only I'll be happy with you. So only deity worship करेंगे, even हम excellent deity worship करें, Krishna is not going to be happy with us. We have to learn to love everybody. So ये सारी चीज़ों पे गहराई से हमें ये करना है. हम सोचते हैं हमारी माला हो गई, हमारा ये हो गया, बस चलो हमें. नो, हमको भागवतम, सी द मेन भागवतम क्लास स्टार्ट्स आफ्टर द भागवतम क्लास. भागवतम क्लास के बाद में हमारा व्यवहार कैसा है दूसरे भक्तों के साथ, हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सोचते ही नहीं भागवतम क्लास खत्म, हमारा माइंड भी खत्म. नहीं, पूरा दिन उसका चिंतन, मनन, निधिध्यासन करना है. श्रवण किया, उसके बाद उसको बार बार, जिस तरह से गाय खाने के बाद में फिर से उसको वापस मुंह पे लाती है और फिर से चबाती है, बार बार मनन करना है. ये आया है आज भागवत के श्लोक में, कैसे मैं अपने दिन में, कैसे मैं अपने लाइफ में इसको
यूज करूँ, कैसे मैं इसको अपनाऊँ, इस पर्टिकुलर गुण को, इस पर्टिकुलर क्वालिटी को. लेट्स मेक भागवतम लाइव इन आवर लाइफ. अभी हम लोग को भागवतम को एक हिस्ट्री बुक बना दिया है. नहीं, एवरी डे, एवरी सिंगल डे. सुनीति से क्या सीखना है भागवतम में? ओह, सो मच पेशेंस. द्रौपदी से क्या सीखना है हमें? सो मच डिपेंडेंस ऑन कृष्णा. कितना हर परिस्थिति में शी जस्ट कॉल्ड आउट फॉर कृष्णा. जब उनकी साड़ी को दुशासन निकाल रहे थे, उन्होंने क्या कहा? शी प्रेड टू कृष्णा. उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए. द्रौपदी की बहुत सुंदर प्रेयर है. द्रौपदी बोलती है, शंख चक्र गदा पानी द्वारिका निलयाच्युता गोविंदा पुंडरीकाक्षा रक्ष मां शरणागतिम. भगवान को याद किया उसने. सुनीति से हमने सीखा. ध्रुव महाराज को क्या किया सुनीति ने? जब ध्रुव महाराज आया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, माँ, ओ तुम्हारी सौतेली माँ तो ऐसी ही है. नहीं नहीं, दैट्स ऑल राइट, तुम कृष्ण से मांगो. सो मच पेशेंस. सी द पेशेंस ऑफ देवहूति. करदमा मुनि ने उनको कितने सालों तक तो उनको पूछा भी नहीं. बिल्कुल वो एकदम वीक हो गई थी. और उसके बाद में सडनली करदमा मुनि बोलते, अरे देवहूति तुम ऐसे कैसे हो गई? एंड देन फिर उनको ना एक सीक्रेट वाटर में नहलाते हैं. एंड देन फिर उनके लिए विमान बनाते हैं. सो मच पेशेंस शी हैड. दीज आर ऑल लाइव. हमारे जीवन में भी when Krishna is responding, not responding, we can hear these examples and हम अपने आप को comfort कर सकते हैं कि भगवान का अपना टाइमिंग है, he will respond. ऐसे हमारा प्रॉब्लम ये है कि अमेज़ॉन की डिलीवरी अगर 2 दिन लेट हो जाती है तो वी अंडरस्टैंड, अरे डिलीवरी कभी कभी लेट हो सकती है. लेकिन भगवान की कृपा कभी लेट हो जाती है तो हम अंडरस्टैंड नहीं करते. वी वांट इमीडिएट कृपा. अरे कभी कभी स्पिरिचुअल डिलीवरी भी लेट हो जाती है. अमेज़ॉन की डिलीवरी लेट होती है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक इश्यू. भगवान की डिलीवरी लेट होती है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू चेंज द प्रोडक्ट इटसेल्फ. वो आपको कुछ और देना चाहते हैं. He wants to give you something else. He has, उनके पास एक better plan है आपके लिए. Just have patience. So भागवतम के ये सारे lessons हमें live लेने हैं. What about Sabari? So much patience. What about Kunti Devi? So much gratitude. इतने दुख में भी she was grateful to the Lord. हमारे पास तो सब कुछ है, still we are not grateful to the Lord. सब कुछ है, but ये हमारा बट कभी जाता ही नहीं है. सब कुछ तो है लेकिन, और ये आदत अगर हम छोड़ेंगे नहीं ना, तो कभी अगर हम स्वर्ग में चले भी गए ना तो वहां भी हम बोलेंगे सब कुछ तो ठीक है लेकिन उर्वशी ने आज सुबह स्माइल नहीं दिया मुझे, रंभा का डांस इतना अच्छा नहीं लगा मुझे. बिकॉज हमको आदत हो गई है, सब कुछ ठीक है लेकिन, ये लेकिन हमें निकालना है. whatever the Lord has given, संतुष्ट, ठीक है, कृष्ण has given whatever Krishna has given, right? So that's a problem. हम we are not, see, we are very much concerned about increasing our bank balance, but what about our brain balance? हमारे मन को हम शांत नहीं कर पा रहे हैं, right? हम अपना बैंक का बैलेंस बढ़ाने के लिए बहुत टेंशन ले रहे हैं, ये करना है, वो करना है, बट व्हाट अबाउट आवर मन का क्या कर रहे हैं? वी हैव टू मेंटेन आवर ब्रेन बैलेंस. ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ था? जिसका ब्रेन बैलेंस था वही ठीक रहा, राइट? कोविड के टाइम पे जिसके पास पैसा था, हाँ ठीक है, लेकिन क्या करोगे आप पैसे से? कमरे से बाहर तो जा नहीं सकते हो. एंड इनफैक्ट जिसका ब्रेन बैलेंस ठीक नहीं था, दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव. बिकॉज ये होता क्या है, पति पत्नी एक्चुअली एक दूसरे से तो शादी के बाद ज़्यादा मिलते नहीं है, बिकॉज 9 to 6, 9 to 9 जॉब होता है. तो सुबह से हस्बैंड चले जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाओ, सो जाओ, संडे एक दिन ही एक दूसरे को बेर करना पड़ता है. कोविड में पूरा साल वेट करना पड़ा. तो तब उनको लगा कि अरे मैंने इससे शादी की क्यों. एंड नहीं, दिस इज सीरियस, जोक नहीं है. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिवोर्स हुए थे. बिकॉज ये सर, अरे यार ये तो कोई और ही है, मैंने जिससे शादी की. बिकॉज पहले तो आपको पूरा दिन उनसे ये नहीं करना पड़ता था ना, 9 to 5 जॉब में, कहीं गाची बोली जाएगा, यहाँ जाएगा, चलो गई भला, रात को आएगा. लेकिन अब तो पूरा टाइम पे रहना पड़ता था. सो बट दोज हु हैड दिस बैलेंस ऑफ देयर ब्रेन, दोज हु हैड टेकन शेल्टर ऑफ लॉर्ड, दे फ्लरिश्ड एंड ब्लॉसम. वो लोग फ्लरिश एंड ब्लॉसम हुए ड्यूरिंग कोरोना. सो या, व्हाट आर वी, व्हाट डू वी वांट इन लाइफ, राइट? इनफैक्ट मुझे लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत सुंदर, बचपन में टेक्स्ट बुक में थी हमारी,
कि वो कैसे एक राजा होता है, वो कहता है कि आप जितना दूर तक भाग पाओगे, याद आ रही है कहानी, जितना दूर तक भाग पाओगे उतनी जमीन आपकी। तो कुछ लोग सेटिस्फाइड है, बस थोड़ा सा भाग के ओके दे आर हैप्पी। पर एक आदमी सोचा जितना दूर भागो उतना मेरा जमीन। भागता रहा भागता रहा भागता रहा, शाम तक भागा। फिर शाम को याद आया कि अरे सूर्य अस्त होने से पहले वापस आना है, नहीं तो नहीं मिलेगी जमीन। और क्योंकि वो आ नहीं पाएगा बिकॉज इज ऑलरेडी इतना भाग चुका है, इतना स्पीड में आया, इतना स्पीड में आया, और फाइनली जो है वहीं का वहीं मर गया। और फाइनली जब मर गया तब कितना जमीन चाहिए उसको, हार्डली 2 feet by 4 feet, उतना में उसको दफना दिया। एंड देन लियो टॉल्स्टॉय रोट ए वेरी नाइस थिंग, सर हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, कितना चाहिए आपको, बस इतना ही चाहिए। जब मर जाओगे इतना छोटा सा ही स्मशान में इतना सा जगह चाहिए। आजकल तो वो भी नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल चेयर में जला देते हैं, आपको जरूरत नहीं है। बट वी आर वर्किंग सो हार्ड, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर मन एंड बुद्धि। भगवान तो यही बोला ना, अभी हमने जो 12वां अध्याय का श्लोक, भगवान क्या बोलते हैं, मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो। भगवान इसी, और हम उसी पे काम नहीं कर रहे हैं। मोर देन वर्किंग ऑन आवर फिजिकल बॉडी, हमें हमारे मन बुद्धि अहंकार पे ही काम करना है, क्योंकि यही हमारे साथ में लाइफ आफ्टर लाइफ कैरी करने वाले हैं। मन पे काम करना है। बहुत बार डिवोटीज बोलते हैं, माता जी शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता। माता जी हमने अभी कल पढ़ा था लेकिन अब भूल गए। क्यों? क्योंकि मन में बहुत कुछ डाला हुआ है। देयर इज नो स्पेस फॉर कृष्णा। मन का इतना परिग्रह किया हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हैं मन में। 1982 में तुमने मुझसे क्या कहा था याद है, इसने मुझे कब इंसल्ट किया था, उसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा किया, ये सारी चीज़ें याद है। इसलिए जो नेसेसरी चीज़ है वो याद नहीं रहती है। तो मन को खाली करो, मन में कृष्ण को रखो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास और भी ज़रूरी चीज़ें हैं सोचने के लिए। तो मन को कृष्ण में केंद्रीकृत करो। जप के ऊपर में अपना क्या है, प्रेम बढ़ाओ, आसक्ति बढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं परसों एक क्लास में डिवोटीज से कह रही थी कि आफ्टर सम टाइम, या परसों नहीं कल ही, वाइट फील्ड डिवोटीज का, माता जी का क्लास था, और मैं कल ही उनसे कह रही थी कि माता जी जस्ट आफ्टर सम टाइम जब आप ओल्ड हो जाओगे, आप कीर्तन नहीं कर पाओगे, आप डांस नहीं कर पाओगे, बिकॉज घुटनों का पेन होगा। आप भगवान के लिए माला बना रहे हो ना, थोड़ा ओल्ड हो जाओगे ना, माला बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सुई के अंदर में धागा ही दिखाई नहीं देगा। किसी को बोलना पड़ता है धागा डाल के दे दो ना आँख ठीक से काम करेगी, ना कीर्तन कर पाना। पहले जैसे कुकिंग नहीं कर पाओगे, कमर की दर्द हो रही है, अब राजभोग नहीं बना सकते हो, अब माला नहीं बना सकते हो, अब भगवान के लिए सेवा नहीं कर सकते हो, मंदिर में झाड़ू नहीं दे सकते हो, कीर्तन में डांस नहीं कर सकते हो। सेवा जो आप अभी इतनी एंथुजियास्टिकली कर रहे हो, शायद आप बाद में नहीं कर पाओगे। तब करोगे क्या? जप ही है हमारा सहारा। और अब हम क्या कर रहे हैं, जप में आसक्ति है नहीं, सेवा में एंथुजियाज्म ज़्यादा है, सेवा में मज़ा आता है, सबके साथ घुलते हैं, बातें करते हो, जप पे आसक्ति रख नहीं रहे हो। तब जब ओल्ड हो जाओगे, तब आपके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं है, बस आपका भागवतम भी शायद ना पढ़ पाओ, चश्मे आ जाएंगे, दिखाई ठीक से दे नहीं रहा है, नींद आ जाएगी। एक ही चीज़ आपका सहारा रहेगा, भगवान का जप। और उस पर हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। वो राजा वाली बात नहीं हो गई। वो एक किंगडम में एक राजा था, उनकी ऐसी सिस्टम थी उनके किंगडम में, उनके राज्य में, जो हर साल वे राजा को बदलते हैं। तो किसी को भी राजा बना देंगे, लेकिन उसके बाद में जब 1 साल हो जाएगा तो उस राजा को एक अजीब से आइलैंड में, एक द्वीप में छोड़ देंगे। वहाँ पे सारे कार्निवोरस एनिमल है और कोई भी आपको खा जाएगा। लेकिन इस बार जब इस राजा का टेन्यूर खत्म हो गया, वो बहुत हैप्पीली गया। बोला अरे आपको डर नहीं है? बोलता नहीं, क्योंकि मैं जो पूरा 1 साल में राजा बना था, तब मैंने वो पूरे आइलैंड को क्लीन कर दिया, सारे एनिमल्स को केज कर दिया, वहाँ पे मैंने मेरा भवन बना दिया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिटायरमेंट का। तो यही हमारे साथ होने वाला है। लेट्स प्रिपेयर अवर सेल्फ। जैसे जैसे हमारी एज हो रही है, शायद बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे पहले जैसे। लेट्स हैव आसक्ति फॉर हरि नाम ऑल्सो। सेवा को इग्नोर नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम हमारी जो 16 राउंड्स चांटिंग है, उसको बड़ी अच्छी तरह से हरिनाम के ऊपर में मोह बढ़ाना है, क्योंकि उसके बाद में ओनली हरिनाम इज शेल्टर। बस हम और हमारे हरिनाम, और कोई नहीं रहेगा हमारे साथ। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कॉन्टेम्पलेट ऑन। हम मन में ये सोच रहे इसने क्या किया, उस भक्त ने क्या किया, इसने क्या किया, बट एक्चुअली हमें मन में ये सारी बातें सोचनी चाहिए। हमारे मन में ये टेंशन होना चाहिए कि अंत काले जब मेरा समय आ जाएगा, क्या मैं भगवान को याद रख पाऊंगी? क्या कृष्ण मेरे स्मरण में होंगे? क्या मेरे आसपास में वैष्णव होंगे? क्या मैं भगवान को देखते हुए, उनकी मूर्ति को देखते हुए, उनके चित्रपट को देखते हुए मैं अपना शरीर छोड़ूंगी?
या मैंने जिन जिन वैष्णवों के खिलाफ अपराध किया है, क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे? क्या मैं कोई एक्सीडेंट या कॉमा में तो नहीं मर जाऊंगी जहाँ पे मेरी स्मृति नहीं है? क्या मैं भगवान को याद कर पाऊंगी कि नहीं? क्या पूरे जीवन के अंत तक मैं अपने नियम पालन कर पाऊंगी? ये जो मैंने 16 माला का व्रत लिया है, पता नहीं है ना, कुछ भी हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, हम ना कर पाए, जब होता है बहुत सारे, अभी तो प्राय में देखती हूँ लोगों को पैरालिसिस अटैक, ये वो कितना कुछ हो रहा है। अब तो फूड भी एडल्ट्रेटेड है, सबकी हेल्थ डाउन हो रही है, तो क्या मैं कर पाऊंगी अंत समय तक? दीज आर द थिंग्स टू वरी अबाउट, कि क्या भगवान मेरे स्मरण में रहेंगे कि नहीं, आसपास में भक्त रहेंगे कि नहीं। अच्छा, लास्ट मोमेंट तक कि क्या मैं फैमिली से अटैच रहूंगी या फैमिली अटैचमेंट छोड़ पाऊंगी? या वो एक जोक नहीं है, एक बूढ़े आदमी का, मर रहा है आईसीयू में और सारे बच्चे उसके पास में आ जाते हैं और वो पूछता है अपनी बीवी को, तुम कहाँ हो? नहीं, मैं आपके पास ही हूँ, चिंता मत करो। बड़ा बेटा कहाँ है? डैडी मैं आपके पास में हूँ। छोटा, तुम कहाँ हो? डैडी मैं आपके पास। मझला, तुम कहाँ हो? डैडी मैं आपके पास में हूँ। फिर वो गुस्सा हो जाता है, तुम सब यहाँ हो तो दुकान में कौन बैठा है? हाँ, दुकान में कोई नहीं है। अरे तुम मर रहे हो भाई, तुम मर रहे हो, लेकिन उसको अभी भी दुकान की चिंता। और ये हमारी भी चिंता है, क्या हम लास्ट मोमेंट में ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा कि आई बी वरीड अबाउट माई रेड कलर का ये वाला, वो मेरा साड़ी कहाँ रखा है, पता नहीं है व्हाट इज इन आवर माइंड। इसलिए बार बार माइंड की सर्विसिंग करनी है। गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, घर में मिक्सी और फ्रिज को क्लीन करते हैं, माइंड को बार बार, मन को क्लीन कर रहा है कि कौन है मेरे माइंड में, मेरे माइंड में कौन है, उसको निकालना है। मुझे सिर्फ मेरे माइंड में कृष्ण को रखना है। तो ये हमारे बैंक बैलेंस के साथ साथ हमारा ब्रेन बैलेंस क्या हो रहा है। अच्छा, हम बिजनेस मैनेजमेंट में तो बहुत एक्सपर्ट है, इतनी सारी MBA की कॉलेजेस खुल गई है, बट व्हाट अबाउट बिहेवियर मैनेजमेंट? हमारा बिहेवियर कैसा है परस्पर दूसरे भक्तों के साथ? अच्छा, आज आपके पति या आपकी पत्नी क्या ऐसा कहेगी कि भगवान अगर मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो आप ही मेरे पति के रूप में मिले? और देखो अभी आपके पति लोग कहेंगे कि भगवान फिर से जन्म मिले तो यही मेरी पत्नी बने। आपके बच्चे कहेंगे कि यही मेरी माँ बने। नहीं नहीं, बच्चे बोलेंगे नमस्कार बस। इनफैक्ट मैं सिडनी में क्लास दे रही थी और एक डिवोटी हाउस प्रोग्राम था और एक प्रभु जी ने प्रश्न पूछा कि माता जी, आई हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हुआ? बोले, माता जी ऐसा मैंने सुना है कि 7 जन्मों तक एक ही पत्नी कंटिन्यू होती है, ये सच है क्या माता जी? मैंने कहा, मैंने तो ऐसा कोई ऑथराइज स्क्रिप्चर में सुना नहीं है। इमीडिएटली सारे प्रभु जी लोग ताली ताली ताली, सारे प्रभु जी लोग, लेकिन माता जी लोग एक भी ताली नहीं बजाए। फिर मैंने माता जी लोग को पूछा, देखो ये लोग कितना खुश हो रहे हैं कि आपके साथ और 7 लाइफ नहीं है, पर आप क्यों दुखी हो रहे? बोले, माता जी ये पूरा जन्म वेस्ट किया उनको ट्रेन करने के लिए, नेक्स्ट लाइफ दूसरी बार, नेक्स्ट लाइफ दूसरा कैंडिडेट ट्रेनिंग। नो नो, पूरा ट्रेनिंग हो गया है, वी वांट टू कंटिन्यू 7 लाइफ, सो आपके पति क्या बोलते हैं आपके बारे में? आर दे सेइंग कि नहीं, यू आर सो अमेजिंग? क्या आपका बिहेवियर ऐसा है? आई जस्ट वांट यू एज माई वाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ। आपके गुरु ऐसा कहते हैं कि व्हाट ए डिसाइपल, आई वांट ए डिसाइपल लाइक यू। गुरु कहते हैं, अरे मेरे भाई चांट कर ले, मुझे तेरे पाप लेने पड़ रहे हैं। हमारे बच्चे हमसे तंग हो गए, हमारे परिवार हमसे तंग हो गया है। वेयर आर वी हेडिंग टू? किस और हम जा रहे हैं? बड़े भक्त बन गए हैं हम, सीनियर डिवोटी हो चुके हैं, अब तो हम सीनियर डिवोटी बन गए, लेकिन हमारे बिहेवियर से सबको नमस्कार है, कोई खुश नहीं है हमारे बिहेवियर से। सो व्हाट अबाउट आवर बिहेवियर मैनेजमेंट? हम बिजनेस तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, बट हमारा बिहेवियर। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर इस्कॉन विशाखापट्टनम डिवोटी से एक एक्सरसाइज करवाई थी। मैंने कहा सब लोग एक वाइट पेपर लो, पेन लो और लिखो, व्हाट डू यू वांट द स्पीच टू बी आफ्टर यू डाई। वो मरने के बाद में होता है ना प्रीति सभा, क्या होता है उसमें, सब आपके बारे में, जो आप नहीं है ऐसे भी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, राइट? ये कितने अच्छे थे। इनफैक्ट मन में ऐसा सोचते कि अरे यार इस टाइम पे मेरा प्रोग्राम था और यहाँ आना पड़ रहा है, राइट? तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके बारे में बोलते। तो मैंने कहा लिखो, व्हाट डू यू वांट पीपल टू टॉक अबाउट यू, कि आप माता निताई सेविनी माता जी ऐसी थी, वैसी थी, ऐसी थी। लिखो, पूरा दिन लो, मुझे कोई रश नहीं है, पूरा दिन लो और लिखो। सबने लिखा। दे केम बैक इन द इवनिंग एंड आई सेड मुझे मत सबमिट करो, आप खुद पढ़ के देखो आप कितने ऐसे हो। नहीं,
हम ऐसे है ही नहीं जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में कहे। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं, आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिखाते हैं गैप एनालिसिस। आप अभी कहाँ हो, कहाँ आपकी कंपनी को ले जाना चाहते हो, उसका गैप क्या है और उसको कैसे पूरा करोगे। हमारी भक्ति जीवन में भी हमें गैप एनालिसिस करना है, कहाँ पहुंचना है और हम अभी कहाँ है, और मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊंगी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी प्लानिंग क्या है। आई वॉन्ट टू बी देयर वन डे, जो मैंने लिखा है मेरे स्पीच में, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे बिहेवियर पे भी हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरों के लिए अपना बिहेवियर मत चेंज करो। नहीं, ये मेरे साथ ऐसा बात करता है ना, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट हमारे लिए है ही नहीं, टिट फॉर टैट भक्तों के लिए है ही नहीं। टिट फॉर टैट तो उनके लिए है जिनको इस भौतिक जगत में जम गया है, यहाँ पे वो सेटल होना चाहता है, उनको करने दीजिए टिट फॉर टैट। हमारे लिए तो एक ही चीज है, लेट गो लेट गो लेट गो, क्योंकि हम जल्दी में है, हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय कम है, हमें जाना बड़ी दूर है और हमारे पास समय कम है। मैं लास्ट मंथ ही पूना में क्लास दे रही थी, तो मैं कह रही थी कि सिंपल एग्जाम्पल देखिए, हमारा फोन, जब हमारे फोन में पूरा 100% चार्जिंग होता है, हम कैसे बात करते हैं, हाँ बोलिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी। और अभी 1% चार्ज होता है, हाँ प्रभु जी बोलिए प्रभु जी, हाँ जल्दी बोलिए प्रभु जी, हाँ हाँ मेरे फोन चार्जिंग खत्म हो रहा है, क्या बोल रहे थे, जल्दी बोलिए प्रभु जी, क्योंकि 1% चार्ज है। अब फोन में ना दिखाई देता है कि 1% चार्ज है, जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना चार्ज बाकी है। कभी भी वी मे लीव द बॉडी, सो हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना, वी डोंट हैव मच टाइम ना। सो किसी और को टिट फॉर टैट करने के लिए अपने आप को मत बदलो। वी हैव टू स्टिक टू त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सही सुना, वी हैव टू स्टिक टू दैट। तो बार बार मुझे हर लेक्चर के बाद में ये क्वेश्चन आता, लेकिन माता जी पीपल विल टेक एडवांटेज, लेकिन माता क्या एडवांटेज ले लेंगे, तुम कौन सा बड़ा मुकेश अंबानी हो, क्या ले लेंगे तुमसे एडवांटेज, हाँ कितना है तुम्हारे पास, क्या एडवांटेज लेंगे। मेरे स्कूल में ना मेरी कोऑर्डिनेटर जो है ना, हर वक्त मतलब एकदम ध्यान रखती है कि कोई टीचर मेरे साथ आके बात ना करे। कि प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे साथ अगर आके कोई टीचर कहती ना मैडम मेरी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है बढ़ा लो, मैडम 2 दिन छुट्टी दे दो, हाँ दे दो, तो वो बहुत केयरफुल रहती है कि मेरे पास आए ही ना। और कभी अगर वो ऊपर राउंड्स में जाती है तो कोई मेरे पास आ जाता है और मैं बोलते थे ठीक है भाई ले लो, छोड़ो क्या करेंगे। वो आके फिर बोलती मैडम आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे ऐसे करने से। मैंने बोला इसलिए तो कृष्ण ने तुम्हें भेजा है, तुम संभालो, मेरे पास आएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू चेंज माई नेचर फॉर अदर्स। सी हमें सॉफ्ट होना ये अवगुण नहीं है, ये हमारा गुण है। और जस्ट बिकॉज ये मेटीरियल अफेयर्स मैनेज करना है हमारे स्वभाव को, सी आई एम नॉट सेइंग एक्सटर्नली बहुत कुछ आपको करना पड़ता है, बट इंटरनली अपने आप को हार्ड मत बनाओ। सी गुलाब जामुन सॉफ्ट है, वो गुलाब जामुन का गुण है, उसका वीकनेस नहीं है, वो सॉफ्ट है इसीलिए हम खाते हैं। तो एक्सटर्नली जैसे नारद मुनि ने सिखाया था सांप को हिस करना है, हिस करेंगे, बट अंदर से वी हैव टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी लविंग टुवर्ड्स एवरीबॉडी। और कोई चिंता मत करो, कोई हमारा एडवांटेज नहीं ले सकता है, लॉर्ड इज ऑलवेज प्रोटेक्ट। हाँ एक चीज चिंता करना है, इफ यू आर नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, कृष्ण के शेल्टर में रहो, देन नथिंग टू वरी, लॉर्ड विल प्रोटेक्ट यू, वो सब भगवान संभालेंगे। मेरे अपने जीवन में आई हैव पीपल अराउंड मी हु डू एवरीथिंग, मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती। बस for me it's very difficult to say somebody no, to say something, but I somehow Krishna arranges that kind of people around me, they do the job. और but if see कृष्ण का एक रूल है, या तो आप अपनी मदद खुद करो या तो उसके ऊपर छोड़ दो, then he will better handle your life. अब आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आप अपना हैंडल करना चाहते हो, you want कृष्ण to handle, कृष्ण will handle. आप में से हमारे गुजरातियों में एक बहुत सुंदर भजन है, it's written by a devotee called प्रेमल दास। हरि ने भजता अजी कोई नी, लाज जता नहीं जानी रे, हरि ने भजता अजी कोई नी, लाज जता नहीं जानी रे। दैट इज अ वेरी लॉन्ग भजन। उसमें प्रेमल दास कहते हैं कि आज तक तो मैंने ऐसा सुना नहीं कि ये भगवान की प्रार्थना करता था और भगवान ने उसको नहीं बचाया।
किसी की लाज जाते हुए अभी तक तो मैंने सुना नहीं है। हमेशा ठाकुर जी ने सबकी मदद ही की है, वेदर इट वॉज गजेंद्र और वेदर इट वॉज द्रौपदी और वॉट एवर इट इज, और नशी मेहता और सो मेनी, और ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। आज तक तो ऐसा सुना नहीं कि किसी ने हरि का भजन किया और हरि ने उसको नहीं बचाया या नहीं मदद की। लॉर्ड विल प्रोटेक्ट, अवश्य रक्षिवे कृष्णा। डिवोटी शुड हैव दैट faith. You know, I remember it as a young girls, you know, we used to sing this song. हम लोग संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते थे. If Krishna wants to kill you, no one can save you. If Krishna wants to save you, no one can kill you. मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के. Krishna wants to save you, who can kill you? And if Krishna wants to kill you, nobody can anyway save you. क्या करोगे? Right? So let's surrender to Krishna. Right? So let's be very kind and soft and nice to devotees. So along with bank balance, brain balance. Along with business management, behavior management. And the another important thing is attitude. Attitude is very important. Nectar of Instruction के preface में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, and attitude of the follower is very important for his advancement. Advancement depends on the attitude. हमारा attitude कैसा है? How do we deal with people? हमारी भाषा कैसी है? हमारा way of looking things कैसा है? Perspective कैसा है? Very important. Are we द्रौपदी और रघुनाथ दास गोस्वामी? द्रौपदी की वाणी बहुत कटु थी. द्रौपदी ने क्या कहा दुर्योधन से? अंध का पुत्र अंधा, उसका दिल तोड़ दिया और बहुत बड़ा महाभारत का ये युद्ध हुआ. और रघुनाथ दास गोस्वामी इन कॉन्ट्रास्ट, चैतन्य चरितामृतम, रघुनाथ दास गोस्वामी को जब जेल में डाल दिया था, याद है जब उनके पिताजी और अंकल भाग जाते हैं और तब वो काजी को क्या कहते हैं, अरे तुम तो जिंदा पीर, तुम तो साधु हो, तुम तो मेरे अंकल जैसे हो, तुम और मेरे पिताजी फ्रेंड्स हो, आप लोग का तो ऐसा झगड़ा चलता रहता है लेकिन अंत में आप एक हो जाते हो. मीठी वाणी से क्या हुआ? काजी ने उसको छोड़ दिया. हमारा एटीट्यूड कैसा है? जब हम बोलते हैं क्या हम लोगों को झगड़ा करवा देते हैं, या जब हम बोलते हैं तो झगड़ने वाले लोग भी अच्छा संबंध बन जाता है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डू वी हैव, राइट? हमारी वाणी कैसी है? वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नॉट बिकम ए कॉज फॉर समबडीज इनकन्वीनियंस. वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. हम लोग क्या करते, कब हमारे पास में कोई आता है तो उनको ज़्यादा भड़का देते हैं. मेरे पास बहुत बार माता जी आती है काउंसलिंग के लिए. दे कम विद अ बिग कंप्लेन. और जैसे पहले माता जी मेरे प्रभु जी ना, ऐसे एक मिनट बिफोर यू स्टार्ट यू आई जस्ट वांट हैव वन क्वेश्चन. आपके प्रभु जी को अफेयर है? नहीं माता जी. वो आपको पैसा नहीं देते? नहीं माता जी. आपको मारते हैं? नहीं माता जी. ये सारे 10 पॉइंट बताने के बाद आप बताइए क्या कंप्लेन है? एक्चुअली वो पुदीना लाने के लिए बोला था, भूल गए. ठीक है, जाओ घर जाओ. हो गया? कंप्लेन हो गया, जाओ. हो गया. यही रहता है. और वो छोटा कंप्लेन को बड़ा. अब दूसरे लोग क्या करेंगे? वो उनके पास में जाने से, हाँ मेरे प्रभु जी भी ऐसा है, मैंने भी धनिया पत्ता लाने के बोला, लाया नहीं है, ऐसे ही है प्रभु जी लोग. और फिर एक लंबा कहानी शुरू. और एक दूसरे को ऐसा बताते बताते एंकरेज करते हैं प्रभु जी के खिलाफ. नहीं, अरे बाबा सीधा बिगर पिक्चर. क्या प्रॉब्लम है आपको लाइफ में? खाना नहीं मिल रहा है आपके लाइफ में? कोई हिरण्यकशिपु है, मार रहा है, अग्नि में जला रहा है कोई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है माता जी. फिर चुपचाप चले जाओ घर जाओ. हो गया आपका काउंसलिंग, हो गया. ये है प्रॉब्लम हमारा. ये आजकल बहुत इस्कॉन में ये ब्रेकिंग एटीट्यूड्स आ गया है. और नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये आइडियल है. क्या आइडियल? हम क्या कर पा रहे? किसी से भी आइडियल और परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करो. Only reasonably they can be good. That's it. कोई भी, whether आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपके बच्चे हो, जो भी है, you know, reasonable. They can be reasonably good. Nobody can become 100% perfect. Only Krishna can be 100% perfect. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम किसी को मिलते हैं, जब हम उसका थोड़ा सा पोर्शन देखते हैं, लेकिन जब शादी करते हैं उसका पूरा पोर्शन दिखाई देता है. वो पूरा पोर्शन हमें पसंद नहीं. सी प्रॉब्लम क्या होता है, एक सेब में भी एक टुकड़ा लोगे तो अच्छा ही है, बाकी का कभी कभी सड़ा हुआ भी रहता है, लेकिन सेब खरीदते हो तो पूरा सेब ही आता है. हम जिनके साथ भी रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी नहीं भी होती है. हम देखते हैं आजकल इस्कॉन में कांग्रीगेशन
मैरिजेस होते हैं, कोई माता जी देख लिया कोई प्रभु जी बहुत अच्छा मृदंग बजाया, कितना अच्छा मृदंग बजाते हैं, धोती पहनने का स्टाइल तो देखो, वही शादी होने के बाद धोती पहनने का स्टाइल तो अच्छा है लेकिन उनको धोती धोना नहीं आता है, धोना तो आपको ही पड़ेगा। मृदंग अच्छा बजाते हैं लेकिन खाना बनाना नहीं आता है। तो हम क्या वो चीज को देख के अट्रैक्ट हो गए, अरे क्या, अरे वो मृदंग बजाएंगे, मैं ऑफरिंग करूंगी, कितना अच्छा होगा हमारा लाइफ, लेकिन बाद में कुछ और ही हो जाता है क्योंकि आपका एग्जैगरेटेड एक्सपेक्टेशंस था, राइट? नहीं, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है इस दुनिया में। मेरे पास बहुत बार ऐसा ही बहुत इंक्वायरीज आती है, आधा ईमेल तो उसी से भरा रहता है, माता जी कैन यू हेल्प मी फॉर ए लाइफ पार्टनर, he should be handsome, he should be tolerant, he should know how to cook, he should be rich, he should be this, he should have complete Bhakti Vedanta Sarvabhauma। मैं बोलती हूँ पूरा लिस्ट दे दो, I will put application to Brahma। बिकॉज ब्रह्मा आपके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, वो स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अरे खुद में तो कुछ गुण नहीं है लेकिन दूसरों में सर्वगुण संपन्न चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? डोंट हैव एग्जैगरेटेड एक्सपेक्टेशंस। जो भी है अपना एटीट्यूड ठीक रखिए, हमारी वाणी से हम किसी को कष्ट ना दे। हर एक पर्सन अलग होता है, एक 5 फिंगर्स भी कितनी अलग होती है, ये सारी सेम साइज की हो तो हम काम भी नहीं कर पाते। एवरीबडी इज डिफरेंट एंड एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट इन कृष्णास क्रिएशन। सो कीप अ बॉन्डिंग एटीट्यूड, आपकी वाणी से, आपकी बिहेवियर से किसी को भी तकलीफ मत दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रॉड नेचर है हमारा या नैरो नेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वी वेरी नैरो माइंडेड, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस हम खुश रहे? नो, वी कांट डू दैट। आज देखिए कोरोना के टाइम पे somebody somewhere चाइना में कुछ खाया, उसका इफेक्ट हम सबको हुआ ना। सिर्फ मैं, मेरे परिवार, दुनिया में सब खुश रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। इसलिए हमारे गुजरातियों में तो बचपन से बच्चों को सिखाते हैं कि भगवान के पास में जाओ और कहो भगवान बद्धानु भलो करो, सबका अच्छा हो इस दुनिया में, कि सब में तो आप भी आ जाओगे ना। हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, नहीं। लेट्स कीप सी वो शिमला और आप गए कभी शिमला दार्जिलिंग में, वो छोटी छोटी नैरो गेज ट्रेन होती है, नैरो गॉज ट्रेन, वो 30-20 पीपल को ले जाती है। और अब बड़े बड़े ट्रेन जो होते हैं ब्रॉड हंड्रेड्स इन पीपल को ले जाते हैं। हमारे जीवन भी ऐसा ब्रॉड हार्टेड होना चाहिए। एवरीबॉडी वसुदेव कुटुंबम, सब हमारे हैं, सब हमारे अपने हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब मेरी नई नई शादी हुई तो दैट वाज इन द ईयर 97 में हम यूरोप गए थे पहली बार। तो यूरो रेल का पास था, तो अलग अलग देश में घूमे, ऑलमोस्ट ऑल डिफरेंट कंट्रीज गए। और उसके बाद में एक दिन जब हम स्विट्जरलैंड की ओर जा रहे थे तो समहाउ ट्रेन में हमारे कोच में कोई गुजराती मिल गया। एक हस्बैंड एंड वाइफ अपने हनीमून पे आए होंगे, देवर गुजराती, आई एम गुजराती। तो मुझे इतना अच्छा लगा उनसे बात करके। तो आफ्टर दैट प्रभु जी वाज टेलिंग कि अरे इतना पूरा दुनिया दिखाया, स्माइल नहीं आया, गुजराती भाई बहन को देख के इतना स्माइल आ गया। मैंने बोला बट आफ्टर ऑल दे आर माई गुजराती ना। और वो खाकरा वाकरा शेयर किया तो बहुत अच्छा लगा। बट देन आफ्टर दैट आई कॉन्टेम्पलेटेड एज आई ग्रू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। नाउ इट्स नो मोर अबाउट गुजराती, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, इट्स अबाउट डिवोटी। अरे कोई भी तिलक लगाए, इस कौन डिवोटी, एकदम कोई एयरपोर्ट में भी दिख जाए, हाँ कौन है आपके गुरु महाराज, आई एम दिस, यू आर विच टेम्पल यू आर कनेक्टेड टू, कितने खुश हो जाते हैं जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स मिल गए। बट इवन दैट इज वेरी वेरी प्राइमरी, ये भी बहुत प्राइमरी है। नाउ यू नो व्हाट्स माय एक्सरसाइज नाउ, जितना प्रेम एक इस्कॉन के डिवोटी तिलक लगाए हुए को देख के मिलता है, उतना ही प्रेम संसार में सबको देख के होना चाहिए। दैट आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। मैं सीरियसली काम कर रही हूँ इस पर, मैं सीरियसली इस पे काम कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू कम वन डे ऑन दैट स्टेज कि हर एक पर्सन को उतना ही प्यार, बिकॉज कृष्णा इज देयर इन हिम एंड हर एंड एवरीबडी, राइट? अरे एक जगन्नाथ रथ यात्रा का रथ
को प्रभुपाद जी प्रणाम कर रहे थे तो डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद जगन्नाथ जी नहीं है, अंदर में लेके चले गए, आप किसको प्रणाम कर रहे? प्रभुपाद ने कहा रथ को प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन क्यों? अरे ये रथ ने जगन्नाथ को कैरी किया था। अरे जगन्नाथ को कैरी 4 घंटा कैरी किया, वो रथ हमारे लिए पूजनीय है। आपके पास में जो बैठा हुआ है उसके हृदय में कृष्ण 24 आवर्स है, वो भी तो पूजनीय है। सबके हृदय में कृष्ण है। वी हैव टू लव एवरीबॉडी। आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन पास्ट टाइम ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक से मंदिर के अंदर आ रहे थे तो एक कुत्ता भौंक रहा था, तो प्रभुपाद ने बड़े प्यार से कहा हरे कृष्णा, तो कुत्ता भौंकना बंद कर दिया और प्रभुपाद फिर अंदर चले गए और उनके जाने के बाद कुत्ता फिर से भौंकने लगा। तो डिवोटीज ने पूरा महामंत्र बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुत्ता और भी भौंकने लगा। उसके बाद में प्रभुपाद जी का भागवतम क्लास हुआ। भागवतम क्लास होने के बाद में एक डिवोटी ने हाथ ऊंचा किया, बोले प्रभुपाद आई हैव ए क्वेश्चन। आपने हरे कृष्णा बोला, उसने भौंकना बंद किया, हमने पूरा मंत्र बोला, फिर उसने भौंकना बंद क्यों नहीं किया? तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर चीज कही। प्रभुपाद ने कहा मैंने जब उसे हरे कृष्ण कहा मैंने आत्म भाव से कहा, लेकिन तुमने जब उसको हरे कृष्ण कहा तुमने उसको कुत्ता समझ के कहा। वो कुत्ता भी जानता है कि ये मुझे कुत्ता समझ रहा है, मैंने आत्म भाव से कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको प्यार करना है। अब ये भी सबको प्यार करना, सब में भगवान को देखना, ये भी सिर्फ 3rd क्लास है। अभी 4th क्लास और एक स्टैंडर्ड ऊपर जाना है। हर एक जीव में कृष्ण को देखना है। एक कुत्ते में हो, एक बिल्ली हो, एक चिमटी हो, हर एक में कृष्ण को देख। अब उस लेवल पे हमें जाना है। सी दीज आर सो मेनी। हम क्या है एकदम क्लास 1 में हैप्पी हो गए, बस हो गया मेरा दीक्षा हो गया, बस हो गया, हमारा तो गोलोक वृंदावन का टिकट कंफर्म हो गया, आगे कुछ करना नहीं। राइट? अरे नहीं, तो अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ, दीक्षा हो गया, मतलब 4 पे लग गया है फोन पर, अभी कंटिन्यू करना है उसको, और आगे। हर एक जीव को प्रेम करना है, सबको प्रेम करना है। मुझे याद है पहले जब मैं फ्लाइट्स में ट्रैवल करती थी, तो मेरे राउंड्स कंप्लीट हो जाने के बाद में जितने भी फ्लाइट में पैसेंजर्स है ना, उनका 1D 1E 1F उनके लिए कर लेती थी। मैं सोचती थी अरे ये लोग तो भक्त नहीं है, पता नहीं कब उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में कनेक्शन मिले, चांस मिले ना मिले, आई चांट ऑन देयर बिहाफ। अब मैंने छोड़ दिया, अब उनके लिए नहीं करती। पता है क्यों? मैं ऐसा सोचती हूँ कि कम से कम इनको एक ह्यूमन लाइफ मिली है, एक ह्यूमन बॉडी मिली है, बट व्हाट अबाउट दोज जीव जो अभी भी प्लांट बॉडी में है? तो अब मैं क्या करती हूँ, जब भी फ्लाइट मूव होती है ओशन के ऊपर से, झाड़ के ऊपर से, ग्रीनरी के ऊपर से, मैं उन जीवों के लिए जप करती हूँ, क्योंकि उन जीवों को पता नहीं कब चांस मिलेगा। बिकॉज 84 लाख स्पीशीज, कब होगा उनका चांस? ऐसे इस्कॉन मंदिर में बैठ के पुलिहारा खीर खाने का पता नहीं है, कितनी योनियों उनको पास होना पड़ेगा। दो स्मॉल स्टार फिशेस इनसाइड द ओशन, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? अब मैंने मेरा प्रार्थना चेंज कर दिया। अभी मैं बोलती कम से कम इनको तो ह्यूमन लाइफ मिला है। आई वांट टू चांट फॉर ऑल दोस, जितनी फ्लाइट जितनी देर उड़ती है आकाश में, हरे हरे हरे, बिकॉज कम से कम वो तो चांट नहीं कर पाएंगे अपने लिए, बट वी कैन ट्रांसफर आवर chanting for them कि भगवान इनको chance दो, let them get a chance to know you. So very important, we love everybody, every jiva, everybody in our community, everybody in the society. That is what Krishna wants. आज के श्लोक पे ही बोल रही हूँ, that is what Krishna wants. And now coming to the most important part, sometimes हम सबको प्यार कर पाते हैं हमारी कम्युनिटी में, हम सब जीवों को, सबको, लेकिन हमारी मदर इन लॉ को प्यार नहीं कर पाते, हमारे हस्बैंड को, बच्चों को, हमारे घर में हम प्यार नहीं कर पाते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी लव ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सी कृष्ण कॉन्शियसनेस में वी वांट हैप्पी फैमिलीज, ये भी एक प्रीचिंग है। आप घर छोड़ के आते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर बढ़ाते हो, वो भी प्रीचिंग है। लेकिन कभी अगर नहीं कर पाए एक आध दिन और घर में कुछ करना पड़ा, तो वो भी एक प्रीचिंग है। हैप्पी फैमिलीज, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैप्पी फैमिलीज चाहते हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स चाहते हैं। जिस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि डोंट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी। हम भक्त बन गए इसलिए हमें हमारी ड्यूटी से भागना नहीं है। हम मंदिर में भगवान के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन चलो भगवान को घर ले चलते हैं। लेट्स टेक कृष्णा होम।
लेट्स टेक कृष्णा होम। घर में अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू लव ईच अदर, हम एक दूसरे, वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस कृष्णाज लव, तो कैसे देंगे किसी को कृष्णाज लव? आप खुद ही खुश नहीं हो, घर में इतनी फाइट हो रही है, ये कुछ हो, कैसे आप बाहर में सबको कृष्ण का प्रेम दोगे? कृष्ण का प्रेम देने के लिए कृष्ण के प्रेम की अनुभूति भी तो जरूरी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम घर में भी हमारा व्यवहार, कभी कभी क्या होता है ना, हम बाहर में बहुत चिंता करते हैं वैष्णव अपराध का, घर में नहीं चिंता करते, पर घर में जो है वो भी तो वैष्णव है। अब कोई कहेगा माता जी मेरे प्रभु जी तो दीक्षा नहीं ली है माता जी, वो चांटिंग नहीं करते माता जी, तो ठीक है ना माता जी, चलता ना? नहीं चलता, क्योंकि वो भी आगे चल के वैष्णव बनेंगे। जैसे एक मैंगो होता है, एक रॉ मैंगो है, एक राइप मैंगो है, रॉ वाला राइप बनने वाला है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। शायद आपको लगेगा नहीं नहीं इस लाइफ में तो मेरे पति भक्त नहीं बनेंगे, हाँ शायद यहाँ बनेंगे, शायद नेक्स्ट लाइफ में बने, तभी भी आपने तो वैष्णव अपराध कर दिया ना। एवरीबडी इज ए वैष्णव, somebody is वैष्णव, somebody is वैष्णव इन मेकिंग, हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, सबको रेस्पेक्ट देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंदिर में, कम्युनिटी में किसी से कुछ हम गलत बात करें तो इमीडिएटली सॉरी प्रभु जी, वांछाकल्प प्रभु जी, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन घर में नहीं करते। इनफैक्ट घर में ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमारा कितना कार्मिक बंधन है, पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेट्स क्लियर द अकाउंट इन दिस लाइफ, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है नेक्स्ट लाइफ में, यहाँ खत्म करो। जिस तरह से मंदिर में वांछाकल्प करते, घर में रात को सोने से पहले पूरा परिवार वांछाकल्प करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं एक दूसरे से गुस्सा में कभी क्या बोल दिया, जोर से बोल दिया, प्रणाम करके एक दूसरे को क्षमा करके फिर ही सोना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू लर्न टू लव एवरीबडी इंक्लूडिंग आवर नॉन डिवोटी फैमिली मेंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज कोई नॉन डिवोटी नहीं है डजंट गिव यू लाइसेंस टू बिहेव बैडली विद देम। वो भक्त नहीं है माता जी, वो भक्त नहीं है तो क्या, तो आपको लाइसेंस है अभी कैसे भी उनकी तरह से बात करूं? नहीं, यू हैव टू लव लर्न एवरीबडी। और यू नो प्यार एक इतना पावरफुल एनर्जी है, लव इज सच ए पावरफुल एनर्जी। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, प्रेम भी कुछ भी कर सकता है। अगर आप किसी को प्रेम दो ना, एक पत्थर भी पिघल जाएगा, प्रेम दो। आई टेल यू सो मेनी रियल लाइफ स्टोरीज। मैंने रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, रियल लाइफ स्टोरी। एक बच्चा, क्या वो जो ये क्या होता है विदेशों में, वो जो स्नो ग्लाइडिंग करते हैं ना ऐसे स्नो स्कूटर में, हाँ स्कीइंग, हाँ वो स्कीइंग करते करते एक्सीडेंट हो गया और देन हॉस्पिटल में, एंड फिर ब्रेन डेड हो गया। डॉक्टर्स ने कहा अब ये तो मर जाएगा, कॉमा में चला गया। लेकिन एक मदर का प्यार 3 वीक्स तक उसके पास बैठी रही, प्यार देती रही, प्यार देती रही, प्यार देती रही। 3 वीक्स के बाद में ही स्टार्टेड रेस्पॉन्डिंग। पूरे मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं, डॉक्टर्स भी सरप्राइज, तब उन्होंने माना किया। लव इज वेरी पावरफुल, लव कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट जब हम छोटे थे, मुझे याद है हम एक रिसर्च ये पढ़ रहे थे, इट इज अबाउट ए बोटानिस्ट, आपने सुना होगा लूथर बर्बैंक के बारे में सुना है आपने? लूथर बर्बैंक, ही वाज ए बोटानिस्ट। उसको कैक्टस पे विशेष रुचि थी, कैक्टस। तो वो सोचा था कि कैक्टस में इतने कांटे क्यों है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस कि कैक्टस को डर लगता है कि मुझे ये कोई अटैक करेगा, तो इसलिए वो अपना कांटा उगाता है सो दैट कोई एनिमल उसको खा ना ले। तो उसने क्या किया, उस कैक्टस को अपने लेबोरेटरी में लेके रख दिया और उस कैक्टस को प्यार देता रहा। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्यार देता रहा, प्यार देता रहा। एंड यू विल नॉट बिलीव, उस कैक्टस से नेक्स्ट टाइम ऐसा एक पत्ता निकला जिसमें थॉर्न्स है ही नहीं। इट फेल्ट प्रोटेक्टेड, उसको प्रोटेक्टेड लगा। अरे जब एक पत्ता रेस्पॉन्ड दे सकता है तो व्हाई नॉट अस? प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्यार दो, सबको प्यार दो। I'll end it here because I don't know who is the organizer. I need to end the class now. 15 minutes more. Okay. You want to hear 2 more stories? There's one very nice story that I like about the penguin. फिर मेरे पास immediately facts मुझे याद नहीं है, but you can actually Google it. कैसे एक I think he was in एक ब्राजीलियन कंस्ट्रक्शन वर्कर था और वो एक दिन ब्राजील में बीच के पास में वॉकिंग कर रहा था।
और उसने देखा कि एक छोटा सा बेबी पेंगुइन जो है वो मतलब लग गया है उसको, तो वो अपने घर लेके गया, 11 महीने उस पेंगुइन को रखा, उसको ठीक किया और बाद में उसको उसने, ये 2011 का है, आप गूगल में रिसर्च कर सकते हो, एंड 2011 की बात है, और उसने बाद में उस पेंगुइन को पानी में डाल दिया। अगेन आफ्टर 1 एग्जैक्ट ईयर दैट पेंगुइन फिर से स्विम करता करता इस पर्सन के पास में आया। इस बार भी वो बीच पे वॉक कर रहा था, लेकिन अब तो पेंगुइन बड़ा हो गया तो वो पहचान नहीं पाया उसे कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है, फिर से कोई और दूसरा पेंगुइन को मुझे देखना है क्या, तो चुपचाप से घर चला गया। तो ये पेंगुइन ऑल द वे उसको घर फॉलो करता हुआ आया। सो इमेजिन 11 महीने का प्रेम जो उसने दिया था, साल ईयर आफ्टर ईयर ये पेंगुइन हर साल 8 महीने के लिए इसके पास आता और 4 महीना फिर 400-500 किलोमीटर अर्जेंटीना स्विम करके जाता और फिर से इसके पास आता। अरे एक पत्ता भी प्यार की भाषा समझता है, एक एनिमल भी प्यार की भाषा समझता है। हम तो ह्यूमन बीइंग्स है, प्यार दे के तो देखो, लोगों को प्यार दे के तो देखो, दे विल रेस्पॉन्ड। कभी कभी रेस्पॉन्स टाइम नहीं, माता जी आपको पता नहीं, ये तो माता जी ऐसी है, वो माता जी ऐसे नहीं। प्यार ऐसा एक चीज है, किसी को भी मेल्ट कर सकता है। आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी। इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी अबाउट ए बॉय कॉल्ड रिक ह्योट। आप नेट में देख सकते हो, RICK, रिक ह्योट, HYOT। अब ये लड़का जब इसका जन्म हुआ, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना वो गला में ये होके आया था, तो ही वॉज बॉर्न विद सेरेब्रल पैलिसी। तो अभी वो एकदम क्या कहते हैं ना, वेजिटेबल जैसा ही है, कुछ नहीं कर सकता, ना बात कर सकता है, ना चल सकता है, कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर्स ने अब कह दिया कि ये अभी एक वेजिटेबल जैसा ही है, इसको आप घर में रख के फायदा नहीं है, आप किसी हॉस्पिटल में या कोई अनाथ आश्रम में कहीं तो भी इसको दे दो। लेकिन पेरेंट्स ने कहा नहीं, ये हमारा बच्चा है, कम से कम इसकी आंख खुली है और ये हमारे तरफ देखता है प्यार से, हम इसको नहीं देंगे। तो उनको बड़ा करते रहे। ये लड़का 11 साल का हो गया। जब 11 साल का हो गया तब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उनको डॉक्टर के पास जब ले गए, तो डॉक्टर ने कहा कि एक कंप्यूटर असिस्टेड डिवाइस से ये बात तो नहीं कर पाएगा, बट ये जो मन में सोचता है वो टाइप होके आएगा, एक कंप्यूटर असिस्टेड डिवाइस। तो उस तरह से द फर्स्ट थिंग दैट उस बच्चा ने जो है अपने पिताजी और माताजी से कम्युनिकेट किया, ही सेड डैडी आई वांट टू रन, मैं भागना चाहता हूँ। अब उनकी डैडी और मदर दोनों की आंखों में आंसू, भागेगा कैसे, ये तो चल नहीं सकता, व्हील चेयर में है। पर उसके पिताजी जो जीवन में कभी 1 माइल भी भागे नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है हम भागेंगे, तुमको भागना है ना, मैं तुमको व्हील चेयर में लेके भागूंगा। तो उसके पिताजी ने शुरू किया धीरे धीरे भागना। जो लोकल इवेंट होते हैं, जैसे आज मैंने सुना आप लोग के मंदिर में कुछ रन था ना पब्लिक गार्डन के पास से, हाँ, हरे कृष्णा रन। तो उसके पिताजी ने सारे लोकल इवेंट्स में धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ये व्हील चेयर लेके वो भागते, और ऐसे करते करते पूरे जीवन भर में 1130 इवेंट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, अपने बच्चे को लेके भागते, और 72 मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया। और एक बॉस्टन मैराथन में तो वो ऑलमोस्ट ऑल मतलब जीतने की ओर तक आए, जीते नहीं। और एक जगह तो वर्ल्ड रिकॉर्ड करते करते सिर्फ 35 मिनट्स के लिए चूक गए। तो आप सारे इसके पास में आए। रिक के जो फादर थे डिक ह्योट, बोला सर आप अपने बेटे को अगर छोड़ दोगे ना तो यू मे विन द मैराथन। अब उसको लेके चलता तो ज्यादा आपका ये होता है, आप अकेले चलोगे ना तो यू विल विन द मैराथन। तो उसने बहुत सुंदर बात कही, सर आई एम नॉट रनिंग द मैराथन टू विन, आई एम रनिंग द मैराथन टू विन माई सन स्माइल। मेरे बेटे की स्माइल के लिए मैं भाग रहा हूं, मैं जीतने के लिए नहीं भाग रहा हूं। तो ऐसे भागते भागते बेटा हो गया 43 इयर्स का, फादर हो गए 61 इयर्स के। अभी भी वो दोनों ऐसा 43 इयर्स के बेटे को लेके भागते थे। एट द एज ऑफ 61 हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आया, डॉक्टर के पास गए, स्कैन वैन करवाया। तब डॉक्टर ने कहा कि आपकी 95% आर्टरीज जो है ब्लॉक हो गई है। और अब सुनिए डिवोटीज, डॉक्टर ने कहा अगर आप ये रन नहीं करते ना तो 15 साल पहले ही आप मर चुके होते। क्योंकि आपने ये रन किया आप बच गए। और तब उनके फादर ने एक इतनी सुंदर बात कही, ही सेड आई थॉट I was giving life to my son, but I never knew all the while he was giving life to me. मैंने सोचा मैं उसको जीवन दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वो मुझे जीवन दे रहा है।
तो हमें पता नहीं है, शायद हम ऐसे सोचते हैं हम लोगों को प्यार दे रहे, अरे नहीं, जब हम किसी को प्यार देते हैं इट्स वी हु गेट नरिश्ड, हमारी आत्मा को पोषण मिलता है। हमें ज़रूरी है सबको प्यार देना, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, क्यों नहीं दे पाते सबको प्यार? बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स ईगो, मैं सो एंड सो, राइट? ये जाति भावना इवन डिवोटी लाइफ में आने के बाद भी। अभी देखिए कुछ दिनों में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि है, और मुझे एक चीज़ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की लीला में बहुत अच्छी लगती है। कैसे एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का असिस्टेंट बिहारी उनको चपाती चपाती देता है खाने के लिए, और जो छोटे छोटे कुत्ते हैं, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, पिल्ले कहते हैं, वो आके खाते हैं महाराज के साथ। और फिर बिहारी आके देखता है ये क्या हो रहा है, और वो कुत्तों को भेज देता है। और दूसरे दिन महाराज फिर बैठते खाने के लिए, अब इस बार कुत्ते आए नहीं क्योंकि बिहारी ने उनको बांध के रखा है। फिर बाबा जी महाराज कहते हैं बिहारी आज धामवासी नहीं आए मेरे साथ खाने के लिए। लो, कौन धामवासी? अरे कल आए थे ना महाराज, वो लोग कुत्ते हैं। सो वॉट, वो लोग धाम में है ना, धामवासी है। मुझे इतनी अच्छी लगती है ये बात कि अरे महाराज कुत्तों को भी ये धामवासी, हम तो धामवासी को भी धामवासी नहीं मानते। कितनी ज्यादा हम लोग दोष देखते हैं। और एक दिन महाराज क्या करते हैं, भंगी होता है ना जो झाड़ू देता है, उससे चपाती लेते हैं। तो सारे बाबा जी लोग उनको जो है क्रिटिसाइज करते हैं, भंगी से चपाती, भंगी से कोई चपाती लेता है, उसकी जाति कहाँ, आपकी जाति कहाँ? बाबा जी महाराज बहुत अच्छी सी एक बात पूछते हैं। महाराज कहते हैं इस वृंदावन में सबसे बड़ा कौन? बोला कृष्ण। कृष्ण से बड़ा कौन? राधा रानी। राधा रानी से बड़ा कौन? राधा रानी के भक्त। भक्त से बड़ा कौन? व्रज की रज। व्रज की रज तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम तो जाते ही वृंदावन व्रज की रज को हमारे माथे में चढ़ाए। तो फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा जब व्रज की रज इतनी इंपॉर्टेंट है, हम उसको सिर पे चढ़ाते हैं, ये तो रोज झाड़ू देता है, व्रज की रज में ही तो रम रहा है। अगर इसके हाथ से मैंने चपाती ले ली तो क्या हो गया? कितनी बड़ी बात है। हम भी इस्कॉन में आ जाते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन जाति भावना हमारी जाती नहीं है। कितना भी हम इनिशिएशन ले ले, सेकंड इनिशिएशन ले ले, सब कुछ ले ले, फिर भी कुछ झगड़ा होगा तो कहेंगे ये बंगाली लोग ऐसे ही होते हैं, ये तमिलियंस, हाँ होशियार तमिलियंस। क्या है ये तमिलियन, बंगाली, गुजराती? अभी भी ये भावना, फिर क्या फायदा हो गया इस्कॉन में इतने साल के? अभी भी वो भावना, ये तमिलियन है, ये गुजराती है, ये बंगाली, ये मारवाड़ी, पक्का मारवाड़ी है। और ये क्यों हम नहीं दे पाते हैं सबको अनकंडीशनल लव? बिकॉज ऑफ टू मच फॉल्स ईगो। मुझे कभी कभी लगता है उन दिनों में गोपियां मटकी में माखन वगैरह लेके, हम भी ऐसे माखन नहीं, हम हमारा फॉल्स ईगो लेके मटकी में घूमते हैं, इतना बड़ी बड़ी मटकियों में हमारा फॉल्स ईगो लेके घूमते। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, जिस तरह से ठाकुर जी वो छोटे छोटे कंकन से, छोटे छोटे पत्थर से वो गोपियों की जो मटकी तोड़ देते थे, मटकी फोड़ देते थे, और फिर मटकी में जितना भी माखन होता था उस सारी माखन से गोपियां भीग जाती थी। हमें भी ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भी फॉल्स ईगो की जो मटकी है उसको फोड़ दो, सो दैट वी विल बी ड्रेंच्ड विथ योर लव एंड मर्सी। हम भी भीगना चाहते हैं आपके प्यार और कृपा से, और भगवान का प्यार और कृपा का अनुभव तभी होगा जब हमारा फॉल्स ईगो की मटकी टूट जाएगी। अदरवाइज एज ऑफ नाउ तो हमें ऐसा ही है कि एवरीथिंग आई एम डूइंग माई सेल्फ। हम लोग का ये है ना कि भाई, एक लास्ट स्टोरी भी खत्म करते, एक लास्ट स्टोरी। एक आदमी था, उसको प्यास लगी थी और उसने देखा बहुत लंबा सा एक कोकोनट ट्री था, उसमें बहुत सारे नारियल थे। तो फटाफट से ऊपर चढ़ा, सारे नारियल को तोड़ा, बांधा और नीचे आ रहा था। जब नीचे आ रहा था ना तो वो कोकोनट का झाड़ थोड़ा सा ऐसा हिलने लगा। जब हिलने लगा तो इसको डर लगा कि बहुत ऊंचा होता है ना कोकोनट का ट्री, अगर अभी मैं गिर जाऊंगा तो इमीडिएटली उसने भगवान को प्रार्थना की कि ठाकुर जी मैं क्या करूंगा नारियल का, आपके लिए ही तो लाया हूं, ये तो मैं भक्ति के लिए, और भक्त की रक्षा नहीं करेंगे आप, आपको ही तो चढ़ाना है, गौर पूर्णिमा का अभिषेक है, आपके लिए ही लाया हूं। ठीक है, अब थोड़ी देर और नीचे आया, अब तक जो हवा थोड़ी सी थम गई। अब इसका माइंड चेंज हो गया, बोला ठाकुर जी 100 का आप क्या करेंगे, 50 मैं रख लेता हूँ, 50 आप रख लो, क्या ऐसे भी अभिषेक में इतना वाटर तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, 50 चलो काफी। अब उसको लगा कि मैं ऑलमोस्ट रीच आ रहा हूं, तब थोड़ा सा नीचे आया, फिर बोला ठाकुर जी डोंट माइंड, लेकिन इसमें आपने किया कुछ नहीं है, लेकिन यू आर ए स्लीपिंग पार्टनर, काम तो मैंने किया है, क्योंकि नारियल दिखा किसे,
मुझे ऊपर चढ़ा कौन? मैं। मेहनत करके नीचे आया कौन? मैं। अब तो स्लीपिंग पार्टनर है 25 रख लीजिए। और फिर और से नीचे नीचे आने लगा और सडनली हवा बदल गई और नारियल का झाड़ एकदम हिलने लगा। अब लगा कि मैं गिरने वाला हूं। इमीडिएटली उसने ठाकुर जी से कहा कि यार तुम तो जोक भी नहीं समझते हो। अरे जोकिंग भाई, जोकिंग, 100 तुम्हारा ही है, टेक इट, जोक कर रहा हूं। ये हमारा प्रॉब्लम। काम सब हम ठाकुर जी से करवाते हैं। कब ठाकुर जी से करवाते हैं? अरे अदर डे मेरे बेटे के पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए मैं गई थी, गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो ड्राइवर मेरा ना ऐसा ऐसा, मैंने बोला तो जल्दी कर, आई हैव बिकम लेट यू नो। तो बोले अम्मा నేను ప్రార్థిస్తున్నానమ్మా దేవుడా దేవుడా అని भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कैसे भी करके मुझे पार्किंग दे दे। ठीक है, हम जा रहे पार्किंग, जैसे पार्किंग मिल गया ना, उसने क्या बोला पता है? परवालेदुले నువ్వు ఊరుకో నేను చూసుకుంటానులే। भगवान को बोले आप चिंता मत करो, मुझे मिल गया है। अरे भगवान ही दिलाया तुमको, जब तक नहीं दिलाया तब तक भगवान, जब मिल गया मेरा। दैट इज अवर प्रॉब्लम। सो क्यों नहीं कर पाते सबको प्यार? बिकॉज ऑफ दी मटकी ऑफ फॉल्स ईगो। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, प्लीज ब्रेक इट, तोड़ दो मेरे इस फॉल्स ईगो के पॉट को। Let us love everybody in this world and that is what Krishna wants। and कृष्णा को प्लीज करना, खुश करना, यही तो हमारे जीवन का गोल है। वी एज ए डिवोटीज हम करना क्या चाहते हैं? क्यों आते हैं हम मंदिर में? क्यों हम पार्टिसिपेट करते हैं आरती में? क्यों कर रहे हैं भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव? भगवान को खुश करने के लिए। और भगवान तो कह चुके हैं कि मैं खुश होऊंगा जब तुम मेरे भक्त को खुश करोगे। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ठाकुर जी गिव मी दैट मैच्योरिटी, गिव मी दैट सेंसिटिविटी। हम सी एज डिवोटीज एक प्रॉब्लम हमारी, वी आर नॉट सेंसिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेंसिटिव। आई टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल मैंने पढ़ा था, आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग 2001 में, जब गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था ना, कच्छ में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था। तो कच्छ का एक गांव है, गांव का नाम है थरा गांव। तो उस गांव में कुछ साधु लोग वहां पे रहे थे, और जो साधु मतलब वो लोग रोज भिक्षा करने के लिए जाते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, यू कैन रीड इट इन हिंदुस्तान टाइम्स। एंड दैट साधु सेड समथिंग सो नाइस। वो साधु ने एक इतनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, वो साधु ने, कि मैं जब इस थरा गांव में भिक्षा करने जाता था तो हर घर में भिक्षा में मुझे मूंग दाल ही देते थे, कोई तुवेर की दाल नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे बोलने से तुवेर की दाल इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। सेकेंड थिंग, तुवेर की दाल से बहुत मिठाई वगैरह, हमारे गुजराती में तो हम पूरम पोली बनाते, ये बनाते, बहुत कुछ बनाते हैं तुवेर की दाल से। सो नाउ दिस पीपल जो भिक्षा दे रहे थे साधु का, पर्पसली कॉन्शियसली मूंग दाल दे रहे थे और तुवेर दाल नहीं दे रहे थे, बिकॉज पूरे विलेज ने एक प्रण किया था कि जब तक सबका घर ठीक ना हो जाए हम एंजॉय नहीं करेंगे। हम कैसे तुवेर दाल की मिठाई खा सकते हैं, हम कैसे तुवेर दाल खा सकते हैं जब हमारे जो को एग्जिस्टिंग जो हाँ गांव में रहते, दे आर नॉट हैप्पी, अभी उनका पक्का घर भी नहीं बना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो तुवेर दाल नहीं खा के मूंग दाल खाएंगे तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, इट्स अबाउट सेंसिटिविटी। आप प्यार दिखा रहे हो किसी का कि आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू, तुम्हारे दुख में मैं भी दुखी हूं, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगी बट आई केयर फॉर यू। बस इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम बड़े अंबानी नहीं हैं, शायद किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन प्यार तो दे सकते हैं, एक स्माइल तो दे ही सकते हैं, किसी को थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। मुझे याद है हम लास्ट ईयर जापान गए थे, तो जापान में एक सिटी है क्योटो। तो हमारे साथ में डिवोटीज सुपर एंथुजियास्टिक, ये दिखा रहे हैं मुझे, वो दिखा रहे हैं। तो हम एक टॉय ट्रेन जैसा होता है ना, उस ट्रेन में बैठ के एक राइड में गए थे। तो हमारा कोच एकदम जो ड्राइवर होता है ट्रेन ड्राइवर के पीछे ही था, और फिर बाद में 1-2-3 कोच थे। और जैसे ही जैसे ट्रेन स्टॉप हुई और हम सब स्टेशन में उतरे थे, एक आदमी जो पीछे की कोच में था भागता हुआ आया और ट्रेन ड्राइवर को कहा थैंक यू, बस और बोल के चला गया। मुझे इतनी अच्छी लगी, कह रही ट्रेन ड्राइवर को भी थैंक यू बोलने, What a grateful person he must be। इसका दिल कितना अच्छा होगा, हमें तो याद भी नहीं आता है। हम तो हमारे घर में जो सर्वेंट्स काम करते, कभी उनको भी थैंक यू नहीं बोला होगा आज तक, बरं उनसे झगड़ा ही करते हैं, डबुल कट చేస్తాను పండుగకి రాలేదు నువ్వు कट చేస్తాను। ऐसे ही है हमारा स्वभाव, मैं पैसा कट करूंगी, तुम नहीं आई थी इधर में, तुम बदकम्मा के टाइम पे नहीं आई थी, इधर नहीं आई थी। कभी थैंक यू तो हमने बोला नहीं होगा। और ट्रेन ड्राइवर को भी थैंक यू बोलना इसको सूझा। मुझे लगा इसका दिल कितना अच्छा है, ठाकुर जी मुझे इसके जैसा दिल चाहिए। सबको थैंक यू, सबको थैंक यू, सबको सॉरी। सो लेट्स डू दैट डियर डिवोटीज। आपको
16 माला करने की क्लास तो मैं नहीं दूंगी, आप लोग सब सीनियर डिवोटीज हो, चांटिंग करते हो, नियमों का पालन करते हो, भागवत पढ़ते हो, आप लोग सब ऑलरेडी हाई लेवल पे हो, बट मैं तो एक बेसिक चीज पे आज बात करने की टॉपिक लेके आई थी कि लेट्स लव एवरीबॉडी। हमारे दिल को सॉफ्ट बनाते हैं बटर जैसा, बिकॉज बटर होगा तभी कृष्ण चोरी करेगा क्योंकि कृष्ण को सिर्फ बटर अच्छा लगता है। हमारा दिल भी बटर जैसा प्योर सॉफ्ट होगा तभी हमारे दिल को कृष्ण चुराएगा। सो लेट्स वेट फॉर हिम टू स्टील आवर हार्ट्स। आई क्लोज इट हियर। थैंक यू सो मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Thank you so much and sorry for going over time. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Let us offer our gratitude to Her Grace Nityashin Mataji for the wonderful and stick class for us to practice Krishna consciousness. One second, one very important announcement. I'm very sorry. I've brought these books for you, dear devotees. बस मैनी टाइम्स डिवोटीज मुझे पूछते माता जी इतनी सारी कहानियां बताते हो, वो कहानी की किताब हो तो हम भी पढ़ सकते हैं, तो आप जस्ट कम अप विद दिस। ये पहला प्रयास है। दिस इज 15 स्टोरीज और इसकी 5 और सीरीज आने वाली है। तो मैं जो स्टोरीज अपने लेक्चर्स में कहती हूँ इसका पिक्चराइज किया हुआ है इस पूरे स्टोरी को और इसके मॉरल्स वगैरह, तो ये इंग्लिश में है। सो दिस इज अवेलेबल। आई थिंक डिवोटीज ने बाहर काउंटर लगाया होगा, तो या दे आर देयर। आप वो किताब को लेके मेरे पास आ सकते हैं, आई पर्सनली साइन इट फॉर यू। एंड सेकेंड थिंग, आई हैव कम अप विद दिस बुक कॉल्ड विस्पर्स ऑफ गीता। सो एक्चुअली 1980s में मेरे गुरु महाराज जयपताका स्वामी लेक्चर्स देते थे कि कैसे गीता पारायण करे तो क्या क्या होता है। बहुत सुंदर सुंदर पद्म पुराण की कहानियां हैं, उसको मैंने रीस्ट्रक्चर करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है विद डिफरेंट पिक्चर्स। तो भगवत गीता के 700 श्लोक और श्लोक के साथ में ये QR कोड दिया हुआ है, आप उसको स्कैन करके सुन भी सकते हो। और ये पर्टिकुलर चैप्टर अगर आप पारायण करोगे तो क्या होगा, उसकी स्टोरी, गीता महात्म्यम एंड ए स्पेशल प्रेयर फ्रॉम माय हार्ट। तो हर एक चैप्टर के बाद में माय हार्ट्स मर्मर, इस चैप्टर के बाद में हम क्या भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है। तो दिस बोथ द बुक्स आर अवेलेबल, यू कैन टेक इट फ्रॉम द काउंटर एंड आई विल साइन इट फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर इंटरप्टिंग योर अनाउंसमेंट। हरे कृष्ण। हम आभार व्यक्त करते माता जी को एक बार हरे कृष्ण मंत्र उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे माता जी ने बताया पुस्तक पीछे है, आप पुस्तक लेके माता जी के पास आ सकते हो, आप माता जी दस्तखत करेंगे उसमें। हरे कृष्ण।